Yeah. Yeah, so we are good with setup Priyesh now, and Great. I'm not sure if Anekanji has joined in. If not, Vidya, would it be okay for you to start with Mangalacharan thing in few minutes Sure, Yogesh ji. if he doesn't join? Okay. Sure. So we have people from every part of the country actually, right from south to north, east and west. Amazing to see people. Jai Jinend everyone. My name is Priyesh Sanghvi. We start in few minutes, but before that I would just like to say आप सभी से निवेदन है कि अपना स्क्रीन नेम के आगे अपनी सिटी नेम जरूर लिखें. Thank you. We roll down in a minute, Yogesh bhai. Yes. Hope Yes. we are all set. I think there are people in the room. So Miral, if you can just allow people from the breakout room to join in, please. Yeah, I'm allowing everyone. There's no one left. okay, maybe just a friction of seconds. I'm seeing them. Yeah, the people are still joining in. So it's Yeah. not 10:30 now, It's and almost there. people are still joining in. Sunday mornings, perhaps. Yes, of course. Let's make this easy. We do have our both the speakers with us also. Jai Jain uncle. सर आप दोनों के माइक म्यूट हैं. जय जिनेंद्र मनीष भाई. Jai Jinesh, Priyesh, how are you? Yes, all good sir. जय जिनेंद्र जयंती सर, आपका माइक अनम्यूट कीजिए सर प्लीज. वहां नीचे एक ऑप्शन है सर लेफ्ट में, वहां पे म्यूट अनम्यूट ऑप्शन दिखाएगा, वहां से आपको अनम्यूट करना पड़ेगा सर. सादर जय जिनेंद्र सभी को. We are starting in few minutes. Would request everyone to kindly rename themselves. आप अपना स्क्रीन नाम कृपया चेंज करके नाम के आगे सिटी जरूर लिख लें. We are good to roll down, Yogesh bhai. All right. So let's keep rolling. Back to all right. So once again, Jai Jain everyone for the next new session of Sanskar Series 2.0. And this is another session where we are starting a new topic, as you all know, Anekantwad. And we have our speakers and everyone is now there. So let's get started. Today, the structure, we will just start with the Mangalacharan. I don't see Anekanji there on the call, so Vidya will take that up for us. Priyesh will talk a little bit about Young Jains, who we are, what we do, and what we want to do. Then we will kick off with our speaker introductions, and then we will talk on the topic. All right. So Vidya, over to you for Mangalacharan.
जय जिनेंद्र सभी को। सेवा धर्म समाज की आगम के अनुकूल, यही पुनीत उद्देश्य है जैन धर्म का मूल। आज हम यंग जैन्स के संस्कार सीरीज के अनेकांतवाद टॉपिक पे एक नया सीरीज शुरू कर रहे हैं और हम लोग इस पे जो यंग जैन्स का जो मूल उद्देश्य रहा है हमेशा अपने समाज की सेवा, धर्म की सेवा, और जो जैन धर्म का एक अलग अलग उसके आयाम हैं उसको जोड़ के समाज को कैसे संगठित किया जाए और समाज और राष्ट्र को कैसे हम एकत्रित करके उसके अनेक अनेक कार्यों में सहयोग करें। हमने आज से 10 साल पहले, 15 साल पहले भी कई कार्य किए हैं, आगे भी करते रहेंगे। आज हम एकत्रित होकर नए कार्य के लिए जुड़ रहे हैं। Okay. यही कहना है मेरे को। धन्यवाद। All right. Should we just do Ramokar mantra at least 3 times and then get started? Om Namo Arihantaram, Namo Shetharam, Namo Ayariyaram, Namo Vajjayaram, Namo Loisabasahudam, Namo Arihantaram, Namo Shetharam, Namo Ayariyaram, Namo Vajjayaram, Namo Loisabasahudam, Namo Arihantaram, Namo Shetharam, Namo Ayariyaram, Namo Vajjayaram, Namo Loisabasahudam. ऐसो पंच नमो यारो सब पाप प्रणाशनो मंगलारंचे सब बेसी परम हवई मंगलम. All right, Priyesh bhai, over to you quickly to introduce young gens, and sorry for your typing mistake in your name. Priyesh. Priyesh, can you unmute yourself, please? No worries, absolutely no problem. Am I audible now? Yes. नमस्कार, जय जिनेंद्र। Priyesh, we lost you. Yeah. Priyesh, we can't hear you, man. Priyesh. All right, so probably let me move on and we can talk about this probably at the end, and we will just continue with the next part of it. Sorry, I think there was some problem. All right. Okay, carry on then. Okay. जय जिनेंद्र, मेरा नाम प्रियेश संघवी है. We represent an organization known as Young Jain, which is a non-section. We allow, as you can see, we love to discuss, explore the Jain philosophy, spirituality, and practical importance to the. उसका practical implementation life में जरूरी है. We generally don't do only webinar. We are this Sanskar series is a part of knowledge sharing details. We also have various elements such as discussion, debate, retreats, debates, business networking, cultural, informal events, conventions, etc. जो बहुत सारे themes, topics पे आधारित हैं और जैन प्रिंसिपल एथिक्स के लिए करंट to go ahead in the version 2.0. Yogesh bhai, the next slide please. We work only on one mission, spreading the value of Jainism. हर बार core values को impact करने के लिए we come again and again to educate the young members. Main objective हमारे पास जो है, we actually promote and spread Jainism, where we leverage on the fundamental principles for life. एक बहुत ही clear understanding Jain principle आज के current scenario में क्या impact कर सकता है और कैसे रह सकता है. We have already seen in pandemic how impactful it has become. Younger generation कैसे Jain way of life को adopt करके आगे बढ़ सकती है,
would love to actually give them a value proposition on the same, majorly to provide young giants to join hands in working together. बहुत सारे अलग अलग aspects पे, so that they increase the self potential and assist in team building, working as a team player in all of them. Thank you so much, Yogesh bhai. Let's go ahead. All right, thanks. All right, so let's welcome our speakers. We have two speakers today. So one of them is Professor Jayanti Lalji Jain uncle. He is the Dean faculty with the Mangalayatan University of Aligarh, which all of us already know. He did his PhD in genealogy from University in Chennai, and he has been a renowned speaker in various forums across the globe. So welcome, uncle. We are definitely lucky to have you here as our speaker today. The other speaker whom we have is Mr. Manish Kasliwal, who has joined us from Singapore on this call today. Manish is a Vice President and Chief Business Development Officer, Executive Board of Member at ATC Asia Pacific in Singapore. And he has been, part of many other organizations in the past as a professional. Motorola, he has been part of L&T, he served in the past. As far as Manish Bhai is concerned, around the Jainism, his contribution towards Jainism is concerned, I think that has been a lot. He is the man behind the idea of Young Jains in India. And I would say that if we are here today and running the Sanskar series, definitely there is an influence and inspiration from Manish, which is still running and continuing, right, over and over the years. So thanks, Manish, being our inspiration and influencer all the time. So that is his contribution. Manish Bhai has been serving many other Jain organizations as of today. He is very active in Jain communities in Singapore as well. And very recently, he has been nominated as top 50 Jain professional across the world by Jito. So that is a quick introduction of Manish Bhai. And now welcome once again Jayanti Lal Uncle Ji and Manish Bhai, and we will now crack on. All right. Thank you, Sabir. So, as I said that the first part, we will hear more from Professor Jayanti Lal Ji around the अनेकांतवाद and जो basic idea है उसमें जो हमारा pattern है, पहले हम अनेकांतवाद के बारे में जयंती लाल अंकल जी से सुनेंगे कि धर्म के हिसाब से या जैनिज्म के हिसाब से उसका क्या पर्सपेक्टिव है. हम उसको अपने एक जैनिज्म के लेंस से देखेंगे और मनीष भाई उसके बाद हमें इसकी प्रैक्टिकलिटी रियल लाइफ एग्जांपल्स के साथ हमें अनेकांतवाद को समझाएंगे. तो चलिए शुरू करते हैं. अंकल जी, ओवर टू यू. ओके. जय जिनेंद्र टू ऑल. I'm very happy that I'm being associated with the Young Jains and thank them for organizing this and giving me an opportunity to share some views with you. जहाँ तक अनेकांत का प्रश्न है, अनेकांत एक टूल भी है और अनेकांत एक लक्ष्य भी है. अनेकांत की आवश्यकता इसलिए पड़ी कि हम जगत को समझना चाहते हैं. We want to understand the universe around us or things before us. तो उनको better understanding के लिए क्या तरीका है, तो इसलिए अनेकांत एक टूल के रूप में हमारे सामने आचार्यों ने और केवली भगवान ने बताया गया है. और उसके आधार से हम दुनिया की कोई भी रियलिटी मतलब सत्य, ठीक है ना, दुनिया की कोई भी रियलिटी, कोई भी वस्तु जो जगत में है उसको अच्छी तरह से समझना हो तो इसके द्वारा समझ सकते हैं. और इसलिए ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टूल है हमारे धर्म को समझने के लिए, वस्तु व्यवस्था समझने के लिए. आचार्य अमृतचंद्र ने इनको वस्तु व्यवस्था का नाम दिया है कि अनेकांत इसलिए कि हम वस्तु व्यवस्था, ऑर्डर ऑफ द यूनिवर्स, ऑर्डर ऑफ द सब्सटेंसेस इन द यूनिवर्स, उसको समझने के लिए इसका प्रयोग करते हैं. तो क्विकली वी गो टू द वर्ड. जो स्लाइड में बताया गया, अनेक का मतलब होता है मेनी और मोर देन वन, और अंत का मतलब होता है एट्रीब्यूट्स या लक्ष्य या गोल जैसा हमने कहा, और वाद का मतलब होता है लॉजिक या
a point of view or a philosophy through which we can understand that. और रियलिटी शब्द के कई अर्थ होते हैं जो हमको समझना जरूरी है। वैसे तो वस्तु व्यवस्था है जैसा हमने बताया, लेकिन रियलिटी का मतलब ये होता है कि समथिंग दैट एग्जिस्ट इटर्नली, जो शाश्वत है, कभी जिसका नाश नहीं होता, उसको कैसे समझें। और फिर उसको जैसे ही हम रियलिटी को समझने जाते हैं तो वो मल्टी डायमेंशंस को लेकर के है। रियलिटी इज नॉट वन, मतलब कोई वस्तु है तो वन, बट लेकिन उसको समझने की जो रीत है वो एक ढंग से पॉसिबल नहीं है। इट हैज ए मल्टी डायमेंशनल, और each dimension has a viewpoint, and that is true as far as that particular view is concerned. Another thing is reality cannot be expressed in one word. एक शब्द में इसको हम बस नहीं कर सकते, और इसीलिए हमें अनेक प्रकार से इसको समझना जरूरी है, क्योंकि जितने भी एट्रीब्यूट्स हैं, जितनी भी प्रॉपर्टीज हैं सब्सटेंस की, दे ऑल एग्जिस्ट साइमल्टेनियसली, और इसलिए इनको समझना बहुत मुश्किल हो जाता है। और लगता है कि कभी आपस में दो प्रॉपर्टीज में या एट्रीब्यूट्स में कन्फ्लिक्ट है, लेकिन कन्फ्लिक्ट नहीं है, वस्तुतः कन्फ्लिक्ट नहीं है। तो ये जो हमने छोटी सी परिभाषा आपके सामने लिखी है, उसमें सारा इनका जो है वो सब के सब आ जाता है कि जैसे वो एक है, इटर्नल सत्य है, वो रियलिटी है। दूसरा ये मल्टी डायमेंशनल है, मल्टी डायमेंशनल है इसलिए अनेकांत है, और एक डायमेंशन भी है और इसलिए इसको नए या एक अंश से उसको समझाया जाता है। कैनॉट बी एक्सप्रेस्ड इन वर्ड्स, इसलिए सप्तभंगी है, और आपस में कंट्राडिक्टरी नेचर है, इसलिए शादवाद है। और ऐसा करके ये अनेकांत एक पैकेज है, मतलब उसको समझने के लिए शादवाद भी चाहिए, उसको समझने के लिए सप्तभंगी भी चाहिए, और ये सब जान करके हमें एक डायलॉग, एक समझने का प्रयत्न करना है जिसके द्वारा हम समझ सकते हैं। तो ऐसा ये चार बातों का एक पैकेज है, इसलिए भले आपके अगली सीरीज में शादवाद और ये सब हैं, हमने देखा अभी, लेकिन हमने सोचा कि इसको ब्रॉडली यहाँ पर ले लेते हैं। नेक्स्ट, ये बहुत ही प्रसिद्ध एग्जाम्पल है, प्लीज गो टू द नेक्स्ट स्लाइड। ये बहुत ही प्रसिद्ध है, ऑल ऑफ यू नो इट, कि इसमें कुछ नया नहीं है, लेकिन एक हाथी को कैसे अलग अलग ढंग से डिस्क्राइब करते हैं तो आप सब जानते हैं। लेकिन मुझे एक दो बातें इसमें कहनी थी कि डिस्क्राइब तो एनीबडी कैन डू लाइक एनी वे ही वांट्स, बट दैट डजंट बिकम अ रियलिटी। नहीं तो वो मिथ्या ज्ञान होगा। रियलिटी तो वो तभी बनती है जब उसको सही ढंग से समझा जाए। जैसे हाथी को कोई कह दे कि ये सूंड है, वो ट्रंक है, वो स्नेक की तरह है, या ये स्पीयर की तरह है, उसके दांत जो हैं और उसके कान जो हैं वो फैन की तरह हैं, ऐसा अनेक, बट दे आर नॉट रियली लाइक दैट। तो रियलिटी इज डिफरेंट। तो nobody can describe the way one likes, but rather we have to describe in a manner that is understandable, और जो रियलिटी को स्पर्श करती है। और यदि ऐसा नहीं है तो वो अनेकांत का नाम नहीं पाता, वो मिथ्या अनेकांत, मिथ्या शादवाद, मिथ्या सप्तभंगी और मिथ्या क्या डायलॉग या मिथ्या विवाद के नाम से चल पड़ता है। इसलिए इसको सही ढंग से समझना जरूरी है, और इसलिए वो ब्लाइंड मैन की बात जाती है। आप सब जानते हैं एग्जाम्पल, तो ब्लाइंड मैन की बात इसीलिए आती है कि यदि अंधे में अंधे हो करके या विदाउट नोइंग इफ यू डिस्क्राइब, देन वी आर नॉट गोइंग टू कम टू द रियलिटी, बिकॉज आवर ऑब्जेक्टिव इज टू अंडरस्टैंड द रियलिटी। सत्य क्या है, त्रैकालिक चीज क्या है, वस्तु व्यवस्था क्या है, आत्मा क्या है, हम क्या है, आकाश क्या है, छह द्रव्य क्या है, ऐसा हमारा समझना लक्ष्य है, और इसलिए इसको सही ढंग से समझना, दैट्स आवर ऑब्जेक्टिव। तो नेक्स्ट स्लाइड। सो फ्रॉम देयर अनेकांत है, मतलब an object can be described in a multi-dimensional way, but the point is that once we describe in multi-dimensional way, there may be some contradictory views, और इसीलिए conflicting views होगा। हमने seemingly conflicting ऐसा लिखा है, दिखने में है, वास्तव में नहीं है, इसलिए seemingly conflicting views ऐसा शब्द का प्रयोग किया है। तो ये शादवाद है। शादवाद का मतलब ये होता है कि कभी हम दो धर्मों की बातें करेंगे, जैसे एक तरफ कहेंगे आत्मा शाश्वत है और दूसरी तरफ कहेंगे कि नहीं आत्मा क्षणिक है, तो पर्याय की अपेक्षा से आत्मा क्षणिक है और द्रव्य की अपेक्षा से आत्मा शाश्वत है, तो दोनों में कंट्रडिक्शन आता है। ऐसे ही सत और असत, तत् और अतत, नित्य और अनित्य, ऐसे कई शास्त्रों में 14 प्रकार बताए हैं। तो उसके ढंग से वो शादवाद की आवश्यकता पड़ती है।
और इसलिए शादवाद से समझ करके ही हम जैन सिद्धांतों को समझ सकते हैं। अर्थात यदि सरल भाषा में फॉर आवर पर्पस यदि कभी कंट्रडिक्शंस आता है तो दैट कंट्रडिक्शन हैज टू बी रिजॉल्व्ड रादर देन सेइंग दैट देयर इज अ कंट्रडिक्शन इन द पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट। तो उस दिन का जो कॉन्सेप्ट है वो शादवाद के नाम से कहने में आता है और इसी को सप्तभंगी के नाम से कहने में आता है आगे जा करके, क्योंकि शादवाद की सिद्धि सप्तभंगी के बिना नहीं हो सकती। तो वो 7 भंग हैं, एक अस्थि, एक नास्ति, अस्थि नास्ति और व्यक्तव्य, ऐसा करके ये 7 भंग बनते हैं। इन सब के आगे एक स्यात शब्द है जो समझना जरूरी है। स्यात अस्थि, स्यात नास्ति ऐसे शब्द का प्रयोग करते हैं। तो स्यात शब्द का अर्थ है कई बार संदेह पूर्वक या डाउटफुल, ऐसा बहुत सारे वैदिक सिद्धांतों ने, शंकराचार्य ने आज से 1000 साल पहले ये सारे अनेकांत का बहुत खंडन किया और कहा कि ये स्यात शब्द संदेह को बताता है, डाउटफुल नेचर को बताता है, इसलिए जैन धर्म का अनेकांत है वो ठीक नहीं है। तो ऐसा भाव नहीं है यहाँ पर। यहाँ तो सिंपली इतना कहना है कि जिस ढंग से हम कहते हैं किसी बात को वो उस ढंग से तो बराबर है, लेकिन इफ यू ब्रिंग अनदर पर्सपेक्टिव देन इट मे लुक लाइक कंफ्लिक्टिंग वन, लेकिन उसका समाधान कर सकते हैं। क्यों कर सकते हैं कि इसमें 7 बातें बताई क्विकली कि जो वस्तु है वो है। जैसे आप दिल्ली में रहते हैं फॉर एग्जांपल, तो दिल्ली में रहते ही हैं, वो अस्थि है। लेकिन नास्ति का मतलब कि दुनिया के जितने भी दूसरे अदर सिटीज हैं उन सिटीज में आप नहीं रहते हैं, आप दिल्ली में रहते हैं, तो हमें नास्ति भी कहना जरूरी है। पूरी तरह से समझने के लिए मैं दिल्ली में रहता हूँ, अर्थात मैं समझने के लिए जरूरी है कि मैं दुनिया के किसी और शहर में नहीं रहता, तो इस तरह से नास्ति है। तो यदि अव्यक्त इसलिए हो गया कि हम सभी एक साथ नहीं बोल सकते। दुनिया के जितने शहर उनका नाम लेकर बोलें कि मैं वहां नहीं रहता और मैं केवल दिल्ली में रहता हूँ, इतना सारा एक सेंटेंस में हम नहीं बोल सकते। पूरा दिन लग जाएगा यदि दुनिया के सारे शहरों को गिनाएंगे या गाँवों को गिनाएंगे। तो इसलिए वो अव्यक्त है, इनएक्सप्रेसिबल, हम उसको एक्सप्रेस नहीं कर सकते। फिर भी फॉर आवर अंडरस्टैंडिंग, सिंपल अंडरस्टैंडिंग, वी से दैट आई लिव इन दिल्ली, तो हम समझ जाते हैं कि दुनिया के किसी शहर में नहीं रहते हैं, दिल्ली में रहते हैं। तो अस्थि, नास्ति और अव्यक्तव्य, इनके परमुटेशन कॉम्बिनेशन से ये 7 प्रकार बनते हैं। तो हम इसमें डिटेल में नहीं जाएंगे क्योंकि थोड़ा टाइम का प्रॉब्लम है। कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। सम फ्यू एग्जांपल्स की, जैसे पानी है, पानी ठंडा भी होता है और पानी गर्म भी होता है। तो वास्तव में पानी ठंडा है कि पानी गर्म है, एक प्रॉब्लम खड़ी हो जाती है। तो नहीं कि दोनों ही पानी के धर्म हैं। अग्नि के संयोग में आकर के गर्म होता दिखता है और वैसे वो ठंडा रहता है, स्वभाव से शीतल है। उसी तरह से एक फादर है, तो वो किसी आदमी का मतलब पिताजी है, तो वो अपने बेटे की अपेक्षा से फादर है, लेकिन वही व्यक्ति अपने फादर की अपेक्षा से उनका सन है। तो ए पर्सन कैन बी बोथ ए फादर एंड सन एट द सेम टाइम। और इसी तरह से बहुत है, आप अनेक, ए पर्सन कैन बी स्टूडेंट एज वेल एज टीचर। नहीं, हम किसी को सुन रहे हैं तो हम स्टूडेंट हैं, और हम किसी को पढ़ा रहे हैं तो हम टीचर हो गए। तो सेम पर्सन कैन बी, डिपेंडिंग ऑन द रोल, he can be called a student or a teacher. Like that it can go on. A medicine can cure also, or medicine can kill a person also. Milk is sweet और दही बन जाता है तो खट्टा हो जाता है। गोल्ड कलर में येलो दिखता है, लेकिन हर येलो चीज गोल्ड नहीं होती। नहीं तो फिर दीवार यदि पीले रंग की है तो दीवार भी सोने की हो जाएगी, तो ऐसा नहीं होता है। इसी तरह से 2 सिंपल एग्जांपल जो हमने दिल्ली का दिए उसको हम दूसरे ढंग से फिर से लेते हैं कि दिल्ली दुनिया के या भारत में ले लीजिए, इंडिया के किस डायरेक्शन में है। तो कश्मीर वाला कहेगा कि दिल्ली साउथ में है, बंगाल वाला बोलेगा कि दिल्ली पश्चिम में है, पंजाब से कोई बोलेगा कि दिल्ली ईस्ट में है, और साउथ से कोई बोलेगा, साउथ इंडिया महाराष्ट्र तमिलनाडु से कोई बोलेगा कि दिल्ली नॉर्थ में है। तो दिल्ली किधर है? चारों ही डायरेक्शन में लोग बोलते हैं, तो अपना अपना रेफरेंस पॉइंट अलग है। लेकिन दिल्ली कहीं नहीं गई है, ना दिल्ली ईस्ट में है, ना वेस्ट में है, ना साउथ में है, ना नॉर्थ में है। दिल्ली तो जहां पर है वहां पर है। उसी तरह से दिल्ली कितना दूर है, तो वो जो जहां पर खड़ा है वहां से वो बोलेगा कि कितना दूरी है। तो कंट्रडिक्शंस नहीं है, वो अपने रेफरेंस के से बोल रहा है, लेकिन दिल्ली तो जहां पर है वहां पर ही है। और इसी तरह से हम थोड़ा सा नेक्स्ट स्लाइड में जाते हैं कि इसीलिए सारी दुनिया में अब जो जैन धर्म में और बाहर में भी
जो व्यूज हाउ इट इज एप्लीकेबल वो पॉइंट शुरू होता है। तो इट हैज ए यूनिवर्सल एप्लीकेशन, और उसको हम 2 या 3 एग्जाम्पल नहीं बल्कि सिद्धांत से समझाने का कोशिश करते हैं। वो ये कि ये जो हमारी कषाय हैं, क्रोध मान माया लोभ, ये रियल कारण है। क्यों रियल कारण है? क्योंकि हम अपने आप को नहीं समझे। हमने अपनी आत्मा को, मल्टी डायमेंशनल जो आत्मा की स्टेटस है उसको नहीं समझा है, और क्रोध मान माया लोभ इत्यादि में चले जाते हैं, जो कि आत्मा के विभाव भाव हैं, दुर्भाव हैं, अच्छे भाव नहीं है, खोटे भाव हैं। और इसलिए उनको नहीं जानते तो फिर जगत में वायलेंस होती है, कन्फ्लिक्ट होता है, झगड़े होते हैं, और दुनिया में भी होते हैं, कंट्रीज में भी होते हैं, और एट इंडिविजुअल लेवल भी होते हैं। तो इस तरह से एक सारा का सारा जो झगड़ा है, सारे झगड़ों का मूल अनेकांत को नहीं समझना है। और हमारे समाज में भी जो झगड़े हो रहे हैं वो भले हम अनेकांत की बात करते हैं, लेकिन हमने रियल में अनेकांत को नहीं समझा है, और इसलिए हमारे समाज में भी, मतलब जैन धर्म में भी इस तरह से झगड़े इत्यादि होते रहते हैं। और इसको आगे चलते हैं, क्योंकि नेक्स्ट स्लाइड में, इसलिए मैं एक छोटा सा कुंद आचार्य का जो स्टेटमेंट है समय सार में 5वीं गाथा में, उसको जरा सा आपको सामने रखा है कि डोंट मिस और मिस इंटरप्रेट बट वेरीफाई ट्रूनेस ऑफ व्हाट आई टेल। जो मैं कह रहा हूँ, आचार्य देव कहते हैं समय सार में कि मैं आत्मा के बारे में कुछ बातें कहूंगा, लेकिन तुम मिस इंटरप्रेट मत करना। मिस इंटरप्रेट करोगे तो झगड़ा होगा, बट इफ यू अंडरस्टैंड द वे इट हैज बीन सेड, देन कोई झगड़ा खड़ा नहीं होगा। विसंवाद शब्द का प्रयोग किया है, यदि आपने समय सार का स्वाध्याय किया हो तो इसलिए यहाँ कहने का मतलब ये कि यदि हम बात को बराबर नहीं समझते हैं तो नियम से झगड़ा होगा। और सही समझने का तरीका अनेकांतवाद है, फिर शादवाद है, वो उसी से जुड़ा हुआ है। और फिर सप्तभंगी से उसका समाधान करते हैं कि सब बात तो नहीं कह सकते, इसलिए ये बात कही और नहीं कही, इस तरह से सारी बात समझ में आती है। इसलिए सारे जो झगड़ों का मूल्य है, तो इसलिए जिनवाणी में एक सॉल्यूशन बताया है। अनेकांत से वस्तु को समझो, शादवाद से समझो, सप्तभंगी से समझो, फिर क्या करो? अच्छा समझ लिया, अब क्या करें? कि अब भी यदि समझ में नहीं आता है तो हैव ए डायलॉग। अब विचार कीजिए, चर्चा कीजिए, आपस में डिस्कशन कीजिए, हैव ए डायलॉग। और डायलॉग के कारण आपका जो डिफरेंट पर्सपेक्टिव है वो हमारे सामने खड़ा हो जाएगा। और इस तरह से यदि हम ऐसा डायलॉग प्रारंभ करेंगे तो हमें अपने आप अनेकांत का रहस्य पकड़ में आएगा। ये जिनवाणी के सिद्धांत हैं। और यदि एक दो और एग्जाम्पल, नेक्स्ट स्लाइड, एक दो और छोटे से एग्जाम्पल देखे जाए तो जो हमारा 12 अंग का लिटरेचर है, नेक्स्ट स्लाइड, 12 अंग का जो लिटरेचर है उसमें सारा उस तरह की चर्चा की गई है। गौतम गणधर ने डायलॉग विद महावीर, ठीक है, उन्होंने समोशन में कई प्रकार के प्रश्न पूछे। क्षणिक राजा इत्यादि ने भी समोशन में जाकर कई प्रश्न किए, एंड उन 60,000 विजिटर का नंबर आता है। तो उन प्रश्नों के माध्यम से ही उनका समाधान हुआ। समोशन इज द बिगेस्ट प्लेटफॉर्म में हम अनेकांत की पराकाष्ठा, समिट, क्लाइमेक्स क्या है कि फिर भी हमें समझ में नहीं आता है, आत्मा की बात, परमात्मा की बात, या जगत के जो मैटर्स हैं उनकी फंक्शनिंग समझ में नहीं आता है, देन समोषण में भगवान के द्वारा सब प्रश्नों का समाधान किया जाता है। एंड दैट थ्रू डायलॉग, नहीं, भगवान की वाणी खिलती है और उस डायलॉग से वस्तु व्यवस्था हमें समझ में आती है। तो जैन धर्म का यही अनादिकाल से एक रीत बनी हुई है कि हम ऐसे ही वस्तु स्वरूप को समझें। एक बात बस, जस्ट एक प्रिकॉशन टाइप, हमने धवला हाउस के एग्जाम्पल दिए हैं, आप देख सकते हैं कि यदि हम किसी इश्यू पर डिस्कशन करने गए और फिर अपना बायस्ड व्यू लेकर के जाते हैं तो काम नहीं चलेगा। एक छोटी सी कथा आती है चींटी की, एंट, उसकी कथा आती है कि 2 चींटी कहीं मिल गए क्रॉस रोड पर, चौराहे पर मिल गए। एक चींटी नमक के खेत में रहती थी और दूसरा जो है वो शुगर केन के फील्ड में रहती थी। तो शुगर केन वाली कहने लगी कि मैं तो बहुत आनंद में हूँ, एवरीथिंग इज सो स्वीट देयर एंड आई एम वेरी हैप्पी। और वो जो नमक के फील्ड से जो आई थी वो कहती हमारे वहाँ तो कोई स्वीट नहीं है, कोई गड़बड़ नहीं, हम तो दुखी हैं, खाने को बराबर नहीं मिलता है, एंड आई डोंट लाइक, आई एम वेरी हैप्पी। तो उसने इनविटेशन दिया, ठीक है, शुगर केन वाली चींटी ने जो सॉल्ट का जो खेत था उसकी चींटी को इनवाइट करके कम टू माय प्लेस एंड हैव ए टेस्ट, जैसे हम दूसरे को इनवाइट करते हैं वैसे इनवाइट किया। बट उस जो
नमक के खेत वाली चींटी थी। उसने सोचा कि मैं वहां जाऊंगी और मैं भूखी मर जाऊंगी तो मुझे शुगर, वो कहती है कि अच्छा है, लेकिन मुझे अच्छा नहीं लगा, तो इसलिए अपने मुंह में ही नमक की एक डली, नमक का एक थोड़ा सा भाग अपने मुंह में ही दबा करके खेत, उसमें शक्कर के खेत में गई, शुगर केन के फील्ड में गई। अब क्या है, आप सब समझ गए होंगे कि वो शुगर केन के फील्ड में जो भी खाने जाती है उसमें नमक का ही स्वाद आता है। तो वो कहती है कि मुझे तो यहाँ कोई डिफरेंस नहीं लगता है, जो स्वाद मेरे खेत में आता था वही स्वाद यहाँ पर आता है। इस तरह से यदि अनेकांत को हम समझने जाएं और अपना बायस्ड व्यू लेकर के चले तो बात समझ में नहीं आएगी। और उसके बाद की जो स्लाइड है वो हमने एक बताने की कोशिश की है। हम क्या बताते हैं वो तो सारी जिनवाणी के सिद्धांत हैं, लेकिन अपनी भाषा में लिख रहे हैं कि दुनिया का कोई फील्ड ऐसा नहीं चाहिए, इकोनॉमिक्स हो, फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, कंप्यूटर्स हो, कोई भी एनी फील्ड, पॉलिटिकल साइंस हो, सारे जो झगड़े होते हैं राजनीति के आप सब जानते हैं, उन सब में इसका प्रयोग संभव है। और ये संभव ही नहीं है कि जैसे वो आचार्य ने उदाहरण दिए कि गधे के सिंग होते हैं क्या, आप ऐसी बात करेंगे तो अनेकांत से नहीं सुलझा सकते। मतलब गधे के, डंकी के सिंग होते ही नहीं, हॉर्न्स होते ही नहीं है, और उसकी चर्चा करेंगे तो अनेकांत से नहीं सुलझा सकते। बाकी इफ रियलिटी इज दैट, कोई इटर्नल चीज वहां पर एग्जिस्ट करती है तो उसको जरूरी हम समझ सकते हैं। इस तरह की रिलीजन हो या कोई भी हो, तो हम रिलीजन की दृष्टि से देखें तो भी एक्चुअली स्पीकिंग देयर इज नो स्कोप फॉर कम्युनिज्म or communalism or any other thing. All religious philosophies can be understood through Anekant, and all conflicts can be removed provided we discuss in the framework of Anekant. Anekant कोई धर्म नहीं है। I would just like to clarify one point before I close. Anekant एक टूल है, एक मेथड है, जिस मेथड के द्वारा हम we can resolve our disputes, और इसीलिए वो लक्ष्य भी बन जाता है, क्योंकि आत्मा ज्ञान स्वरूप है, उसको समझना है तो हम टूल का यूज करते हैं अनेकांत को, और हम आत्मा ज्ञान स्वरूप ऐसा समझ लेते हैं। तो इसलिए वो साधन भी है, टूल भी है, मेथड भी है। एट द सेम टाइम हमारे लक्ष्य की प्राप्ति भी उससे हो सकती है। टू कंक्लूड, जो लास्ट स्लाइड है, क्योंकि 19 मिनट हो गया, 1 more minute is there. So if you look at the summary part, though through this use of omnipotent tool of dialogue, देखिए omnipotent मतलब कोई इतना शक्तिमान है कि इससे कोई भी समस्या का समाधान हो सकता है। किसी समस्या का समाधान न हो ऐसा संभव नहीं है, इसलिए डायलॉग बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और जो एपरेंट कंट्राडिक्शंस लगते हैं, एपरेंट है, ऊपर से दिखते हैं, वास्तव में है नहीं। ऊपर से क्यों दिखते हैं? बिकॉज आवर अंडरस्टैंडिंग इज नॉट परफेक्ट। केवली परमात्मा की अंडरस्टैंडिंग परफेक्ट होती है, और इसलिए जब तक हमारे में इम्परफेक्शन है, हमें समझ में कम आता है, सो थ्रू डायलॉग वी कैन रिजॉल्व एनी प्रॉब्लम। दूसरा जो पॉइंट हमने लिखा वो जस्ट इनडायरेक्टली हमने पहले ही बोल दिया था, वो ये कि प्रवचन सार की गाथा के आधार से हमने लिखा है कि भाई समोशन में तो सब प्रश्नों का क्या समाधान सर्वज्ञ सहज अभिराम हो, कि समोशन में अनंत भगवान के कॉन्फ्रेंस में, या जो वर्ल्ड क्या यूनिवर्स की कॉन्फ्रेंस है, समोशन को अंग्रेजी में हम कभी कभी कॉन्फ्रेंस ऑफ द यूनिवर्स ऐसा ट्रांसलेट करके बोलते हैं, तो वहां पर तो सब प्रश्नों का समाधान होता है। सो दैट्स द हाईएस्ट फोरम जहां पर डायलॉग के थ्रू सब प्रश्नों का समाधान हो जाता है। तो हम भी हमारे छोटे प्रश्नों का समाधान इस तरह से कर सकते हैं। और अंतिम में एक बात कहनी थी, आप सब जानते हैं कि हम लोग पूजा इत्यादि में शांति पाठ करते हैं, ठीक है। तो शांति पाठ का मतलब ही वही है कि हमारे सब कन्फ्लिक्ट जो हैं, हमारे सारे विरोधाभास हैं, वो खत्म हो और हम शांति से जिएं, और शांति से समझ करके आत्मा को समझना हो, केमिस्ट्री को समझना, फिजिक्स को समझना, पॉलिटिक्स को समझना हो। यदि अनेकांत से हम समझेंगे तो हम नियम से वस्तु को अच्छी तरह से समझ करके अपना जीवन सफल बनाएंगे। और यदि अनेकांत को नहीं समझेंगे तो हम जीवन भर झगड़ा करते रहेंगे, परिवार में भी, देश में भी, रिलीजियस प्लेटफॉर्म पर भी, और सब जगह। इस तरह से अनेकांत एक बहुत ही पावरफुल टूल है, और हमारे पूजाओं में, शास्त्रों में बार बार इसका शब्द का प्रयोग होता है। जिनवाणी की स्तुति में अनेकांत और शादवाद शब्द का प्रयोग होता है। तो इस तरह से इन दोनों शब्दों का जो सामान्य अर्थ हमें समझना चाहिए वो हमने ब्रीफ में लेने का प्रयत्न किया। टाइम इतना ही है तो इतना ही थोड़ा सा भी है। बाकी जय जिनेंद्र। थैंक यू अंकल।
ये काफी अच्छा मतलब ज्ञानवर्धक है। कई सारी चीजें मैंने इसमें नई सुनी और सीखी। जिससे पहले हम सवालों पे बाद में आपके पास आएंगे, मैं इनवाइट करता हूँ मनीष भाई को। मनीष भाई, ओवर टू यू। जय जिनेंद्र सभी को। अंकल जी जय जिनेंद्र आपको भी। वैसे तो हमें आपको सुनने का मौका हर बुधवार को मिलता है, सिंगापुर के सभी लोगों को। तो खुशकिस्मत है हम। आई थिंक वी आर वेरी ब्लेस्ड इन दैट सेंस कि आपके जो प्रवचन होते हैं, जो आपको जो स्वाध्याय करने का मौका मिलता है। और इसलिए मैंने सोचा कि आज जब योगेश व्हेन ही अप्रोच्ड मी, मैंने कहा who better than जयंतीलाल जी अंकल। So for me you are my guru, you are my mentor, and I think the path towards learning about self, I think you have enabled it to a large extent for me. So thank you very much. Thank you. So सबसे पहले तो योगेश भाई मैं यंग जैन ग्रुप का भी धन्यवाद देना पसंद करूँगा, because I mean I don't know how to start. I'm feeling nostalgic क्योंकि आप वो सभी लोग हो जिनके साथ मिलके हमने आज से 15 साल पहले यंग जैन शुरू किया था। और आज वही सब लोग वापस यहाँ पर हैं। एंड इट इज सो नाइस, सो आई एम सो हैप्पी टू सी कि आप लोगों ने उस जर्नी को कंटिन्यू किया है। और एक मिशन हमारा ऑब्जेक्टिव हुआ करता था, इफ यू रिमेंबर, मुझे अच्छी तरह से याद है, हमारे यंग जेंस ऑफ इंडिया का एक ऑब्जेक्टिव हुआ करता था कि develop and prepare a next generation leadership who have all the values, Gen values, non-violence, non-possessiveness, non-one-sidedness instilled in their careers and their life. And when I see this group today, I think this is a wonderful platform that you guys have created. So सबसे पहले तो आप सभी लोगों को बहुत धन्यवाद। हम यदि अनेकांतवाद की बात करें तो मेरे ख्याल से ये जैनिज्म का it's one of the most profound and powerful insightful concept that has been ever developed. But at the same time, it has also not been understood properly. It is the least understood. अंकल जी जैसे बता रहे थे कि हम काफी बार उसको किसी और कॉन्टेक्स्ट में समझने की कोशिश करते हैं और उसका गलत मतलब निकाल लेते हैं। But अनेकांतवाद basically is like a philosophical talisman, right? To ward off all the dogmatic thinking or myopic fundamentalism. Basically, not closing oneself off from the contrarian perspectives. तो आप जब अनेकांतवाद में बिलीव करेंगे तो आप एक contrarian व्यू को समझना, सीखना, उसको एक्सेप्ट करना भी सीख लेंगे। And that is a very, very important part of अनेकांतवाद. As the name suggests, right? Non-absolutism, non-one-sidedness. तो आप इसको किसी भी दृष्टिकोण से देखिए इस अनेकांतवाद प्रिंसिपल को, या आपको बेसिकली बार-बार एक ही चीज बोलता है कि एक पर्सपेक्टिव इज नॉट द कंप्लीट पर्सपेक्टिव। आप यदि इसको सिर्फ एक एंगल से देख रहे हैं, एक दृष्टिकोण से देख रहे हैं, एक अपने खुद के पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हैं, तो वो पूरा सत्य नहीं है, right? And I think that's what we need to understand. So अंकल जी ने उसको बहुत अच्छी तरीके से जो हमारे शास्त्रों में लिखा है उसके हिसाब से बताने की कोशिश की है। और ये सब्जेक्ट इतना डीप है, आई एम श्योर अंकल जी कैन स्पेंड आवर्स ऑन दिस सब्जेक्ट। बट एट द सेम टाइम आई थिंक हमारे लिए ये भी इम्पोर्टेंट है कि हम इसको थोड़ा सा प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से भी समझें। और हम जो एक लाइफ जी रहे हैं, चाहे हमारी प्रोफेशनल लाइफ हो या घर की जिंदगी हो, या हम समाज में जो काम कर रहे हैं वहाँ हो, हम उसमें इस अनेकांतवाद को किस तरीके से लेके आए जिससे कि हम सही चीजों को समझें, कॉन्फ्लिक्ट्स कम करें और सही दिशा में आगे बढ़ते चलें, राइट? So let's talk about it a little bit more. Yogesh, you can move to the next slide, please. Yeah. So before I talk about this chart, I was just reading a quote yesterday from Philip Carr-Gomm. He said that Jainism, with its extreme reverence for all life forms, is today seen as a religion that can champion ecological issues.
तो मैंने कहा कि मेरा ऐसा सोचना है कि why only ecological issues? Even in management issues, in professional life issues, Jainism plays a very important role. And Anekantwad is one such principle. So it's a different thing that a lot of people have not understood it properly, or we have not taken this principle outside to the audience, to the external audience, and we have not explained them in the right context, and hence they do not understand Anekant that well. But in my opinion, Jainism has also, or can also, champion a lot of these management, professional, industrial issues through principles of Jainism. Right? Now let's look at this chart. And unfortunately, this is not an interactive session. We are not in a hall, so we can talk about it. But if you look at this chart, what does this chart tell you? Right? Different people will think differently about this chart. Someone will say, "Ki the bigger circle comprising of those small circles," right? Someone will say, "Oh, this is an org chart." Someone will say, "Ki ये कोई एक product है और उसके ये components हैं," right? So, depending on your own background, on your own level of knowledge, आपका ज्ञान कितना है, आप किस फील्ड से आ रहे हैं, आप किस तरह का बैकग्राउंड लेकर आए हैं, आप इस चार्ट को इंटरप्रेट करना शुरू कर देंगे। और वो कहीं से कहीं तक गलत नहीं है, वो आपके ज्ञान के बेसिस पर आप उसको सही इंटरप्रेट कर रहे होंगे, राइट? अब योगेश, इफ यू गो टू द नेक्स्ट चार्ट, मैंने इस चार्ट को सिर्फ उल्टा कर दिया है। अभी पहले वाले चार्ट के अंदर हम ये सोच रहे थे, जो हम प्रोफेशनल वर्ल्ड से आते हैं, हम ये सोच रहे थे कि ऊपर जो है वो सीईओ सीएक्सओ लेवल है और बाकी नीचे बाकी दूसरे डिपार्टमेंट से दूसरे मैनेजर्स हैं या डिजाइन इंजीनियर्स हैं, व्हाटएवर। That's how we think, that's how we are sort of tuned to think. But I have just done the other way. Now someone can say कि smaller circle makes the bigger circle. In the previous chart, the bigger circle was comprising of smaller circles. In this chart, I'm saying the smaller circles make the bigger circle. And I hope you can relate to the difference here, right? तो सिर्फ एक ही चीज को हमने उल्टा करके देख रहे हैं, तो हमारा दृष्टिकोण कुछ और हो गया है, हम कुछ और तरीके से सोच रहे हैं। एंड इसलिए आई थिंक जो अंकल जी बात बोल रहे थे और जो अनेकांतवाद में हम बोलते हैं कि हम जिस भी सब्जेक्ट पर बोले या बात करें, हम किस कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहे हैं, किस रेफरेंस में बात कर रहे हैं, उसके बारे में सोचना बहुत जरूरी है। मैं कुछ एग्जांपल्स देना पसंद करूंगा यहाँ पर, जिससे कि आपको ये थॉट और थोड़ा क्लियर हो, राइट? लेट्स से हम एक ऑर्गेनाइजेशन की बात करते हैं जहां पर लेट्स से हम प्रोडक्ट डेवलपमेंट की बात करते हैं। तो एक प्रोडक्ट डेवलपमेंट टीम के अंदर एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर होगा, एक हार्डवेयर इंजीनियर होगा, एक सप्लाई चेन का आदमी होगा, एक इनोवेशन का बंदा होगा, एंड मे बी देन समवेयर the bigger circle that you see on the top, maybe that's the product manager or product director, और उसके ऊपर सीईओ होगा, जो भी होगा। अब जो सॉफ्टवेयर इंजीनियर का बंदा है, उसने अपने हिसाब से एक मॉड्यूल तैयार किया और उसने बोला कि मैं जो कर रहा हूँ बस वही सब ठीक है। हार्डवेयर वाला सोचता है कि मैंने जो हार्डवेयर मॉड्यूल तैयार किया है, उसकी जो डिजाइन है वही बेस्ट है, बाकी सब तो ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। सो एवरीवन इन द टीम starts thinking or looking at their own job as the only truth, and they forget कि बाकी और भी एग्जिस्ट करते हैं। लेकिन जो प्रोडक्ट मैनेजर है या प्रोडक्ट डायरेक्टर है, वो थोड़ा सा एक लेवल ऊपर उठ के सोचता है, और उसके सामने ये सारे कंपोनेंट्स, सारे मॉड्यूल्स हैं, वो उन सबको देख रहा है, तो उसका व्यू थोड़ा सा अलग होता है। उसे पता है कि हर चीज की इंपॉर्टेंस है और हर मॉड्यूल इसमें इंपॉर्टेंट है इस प्रोडक्ट को बनाने में। उसके लिए रियलिटी थोड़ा सा डिफरेंट है। हम थोड़ा सा और ऊपर जाएंगे यदि, तो लेट्स से हम सीएफओ लेवल पर जाते हैं या सीएक्सओ लेवल पर जाते हैं, तो वो उस चीज को थोड़ा सा और अलग पर्सपेक्टिव में देखते हैं, राइट? सो आप जब थोड़ा सा ऊपर उठ के इस कोई लाइक अपने लेवल से आप थोड़ा सा ऊपर उठ के देखेंगे, तो आपको शायद से सच्चाई कुछ और भी दिखना शुरू होगी। सो द पॉइंट आई एम ट्राइंग टू मेक हियर इज दैट इन आवर प्रोफेशनल वर्ल्ड, whichever role we are playing, it is very important for us to understand that you are just part of one big problem that is being that your organization is trying to solve, right? You have to understand the problem in totality, in a holistic way, and अनेकांतवाद helps you understand that. आप जब अनेकांत के प्रिंसिपल को समझ जाएंगे, तो आपको लगेगा कि नहीं,
मैं जो सोच रहा हूँ वो तो एक शक्ति है, लेकिन उसके अलावा भी 4 शक्ति और हो सकते हैं। और जब उन चारों पांचों को मिलाएंगे या अनेक को मिलाएंगे, अनेकांत को मिलाएंगे, तब जाके हमें पता लगेगा कि सत्य थोड़ा सा कुछ और है, right? So I thought this, these two charts are important to show that perspective to you. Yogesh, if you go to the next chart. This is again a very beautiful way of showing things, and this is a chart which I have used many years back in I think 2006, 2007, when I was speaking at the UN General Assembly in New York. And so don't look at the right chart, just look at the left chart first. Okay, what do you see? You see a rabbit and a carrot. Now you hide the left chart and you look at the right chart. What do you see? Anyone? I mean, I know this is not, but you will see a duck with beads. हमने क्या किया है? एक चीज तो कांस्टेंट है वहां पर, वो जो डक या रैबिट जैसा जो फिगर लग रहा है वो कांस्टेंट है। हमने एक जगह कैरेट को लगाया तो वो रैबिट विद कैरेट का व्यू दिख रहा है, इधर हमने पर्ल्स लगा दिए तो व्यू चेंज हो गया। So this is the beauty of how you look at things, from what perspective you're looking at things. And so I thought I'll just share this chart, this pictorial chart with you to just further clarify the concept of multiplicity. Next chart, please. Uncle Ji has covered it, so I'll not go through. This is a very common example, and I think this is one of the most used chart in any management thing where they try to teach you the concepts of management. And again, they don't call it as Anekant one, but I think they try to explain the concept that, look, don't assume that what you're thinking is the only right thing. There are other people who also have their own views. Listen to other views. So next chart, please. Okay, now, I talked about one aspect of it, but the more and more you think about Anekantvad in the professional world or in our day-to-day life world also, and I'll take some examples, not necessarily these are the only examples, but even you can think of many such examples. आप टीम बिल्डिंग और लीडरशिप की बात लीजिए, हम कितनी बार ये होता है कि आप कोई ऑर्गेनाइजेशन का, आप किसी ऑर्गेनाइजेशन के पार्ट हैं, whatever, professional, social, सामाजिक, जो भी हो, and we are doing certain job in it. We may or may not be happy with the direction the organization is moving forward. और हम views बनाना शुरू कर देते हैं कि हमारे CEO को तो पता नहीं है कहाँ लेके जा रहा है, पता नहीं है, हमारे stock price गिरते जा रहा है, right? या हमारा, like, we lost few customers here and there, and whether we are doing things the right way or not. So we start making views without knowing the complete reality. And in my opinion, I think that is something which is what we should avoid in our professional world, in our personal world. कोई भी हो, आज मैं example लेता हूँ, and I'm going through this phase, as a father. My kids are, they have their own way of thinking. They want to live life in their way, in their style. And a lot of times we think that we are the only ones who are right. हमारे बच्चों को क्या आता है? लेकिन जब आप उनकी बात सुनेंगे, जब आप उनका पर्सपेक्टिव सुनेंगे, तो आपको पता लगेगा कि वो गलत नहीं सोच रहे। उनके पास जो नॉलेज है, उनके पास जो इंफॉर्मेशन है, उसके बेसिस पर वो जिस निष्कर्ष पर पहुंच रहे हैं, या वो जो एक एनालिसिस कर रहे हैं, और हमारे पास जो इंफॉर्मेशन है, हम जिस उसको लेकर जो एनालिसिस कर रहे हैं, वो दोनों अपनी अपनी जगह सही है। लेकिन यदि हम ये मानकर बैठ जाएंगे कि सिर्फ हम ही सही हैं और सामने वाला गलत है या दूसरा गलत है, तो कभी भी हम आगे बढ़ ही नहीं पाएंगे और वो कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट करेगा, राइट? सो आई थिंक one thing that Anekantvad, in my opinion, would resolve is how to handle conflicts. Conflict management, I think, is one of the practical example in management where आप अनेकांतवाद को लेके आइए और conflict resolution अपने आप देखते चले जाएंगे कि किस तरीके से आप इसको काफी amicably consensus build करते हुए आप उस conflict को resolve कर सकते हैं, right? So ऐसा ही आप business decisions में होता है। I'll give you an example again, personal life, right? हम कितनी बार सोचते हैं कि हमें एक नई कंट्री में जाना चाहिए,
Now, me being responsible for certain geography, I'm always attached to what I'm thinking, to my own geography. I think कि मुझे सब कुछ पता है, लेकिन जो मेरी एंटायर ऑर्गेनाइजेशन है, जो सिर्फ एशिया नहीं है, जो पूरे वर्ल्ड को देख रही है, उसका अलग पर्सपेक्टिव है, वो किसी और पर्सपेक्टिव से देख रहा है। उनके लिए एशिया ही नहीं, उनके लिए लैटिन भी इंपॉर्टेंट है, उनके लिए यूरोप भी इंपॉर्टेंट है, उनके लिए यूएस भी इंपॉर्टेंट है, उनके लिए अफ्रीका भी इंपॉर्टेंट है। तो वो जब किसी चीज को देख रहे हैं तो वो किसी और कॉन्टेक्स्ट में देख रहे हैं। व्हाट यू आर सबमिटिंग टू योर मैनेजमेंट फॉर बिजनेस डिसीजन पर्पस is not the wrong input, but that input is only one part of the entire thing that they need for decision making, right? So again, if and I'm maybe I'm oversimplifying, Uncle ji, please correct me if I'm wrong, if I'm taking the audience in the wrong direction, but my point here is, yeah, Uncle ji, sorry, please stop. It's okay, all right, no problem. Yeah. So my point is that, you know, we have to start looking at things in a very different perspective, and Anekantwad helps you in getting that bigger perspective. It helps you in sort of, you know, coming to this conclusion that, you know, start respecting other people's view also. And the moment you start respecting other people's view, you know, the world will be much happier. शांति आएगी, खुशहाली आएगी। आप लोग हर बात पर झगड़ा नहीं करेंगे। और ये अगेन, ये कहना बहुत आसान है मेरे लिए भी और हम सबके लिए, लेकिन जब हम प्रैक्टिकल लाइफ में इसको करने की कोशिश करते हैं तो वो शायद से नहीं हो पाता है। पर अगेन, दिस इज वेयर जैनिज्म कम्स इनटू पिक्चर। इफ वी स्टार्ट लुकिंग इनटू जैनिज्म इन अ होलिस्टिक वे, और हमारे जो 3 A's हैं, जो हमारे द 3 वर्च्यूज ऑफ ए, राइट, द अनेकांतवाद, अहिंसा, अपरिग्रह, आप उन जब सारी चीजों को साथ में लेके आते हो तो आप देखोगे कि जैनिज्म आपको बहुत सारे रास्ते अपने आप खोलते जाता है। अगेन, हम जब अंकल जी के साथ वेटनरी को स्वाध्याय करते हैं तो अंकल जी अभी हमें शुद्धात्मा के बारे में बता रहे हैं, और वहां पर द पॉइंट दैट ही एम्फसाइजेस इज यू फोकस ऑन योरसेल्फ, यू फोकस ऑन योर सोल, यू आर द शुद्धात्मा, राइट। ऐसा ही हम जब अनेकांतवाद को उसमें लेके आते हैं तो हमें ये रियलाइज करना जरूरी है कि हम सिर्फ एक शक्ति को देख रहे हैं। अनेकांतवाद हमें और बहुत सारी चीजों को दिखाना शुरू करता है, एंड दैट्स वेयर यू विल सी दैट प्रॉब्लम्स आर गेटिंग रिजॉल्व्ड, राइट। वी स्टार्ट लिविंग मोर एमिकेबली। अगेन, technology, innovation, product development, I touched upon it. Many more such examples you can use in the professional world where Anekantwad has a very important role to play. But at the same time, अंकल जी ने जो बात कही थी मिथ्यात्व की, वो भी बहुत जरूरी है कि आप किसी गलत चीज को मान के उसको सत्य मान बैठो और फिर उस चीज को लेके आप झगड़ा करो या उसको बोलो कि मेरा सत्य भी सत्य है, तो वो भी गलत है। सो राइट नॉलेज इज इक्वली इंपॉर्टेंट। एम्फेसिस हियर इज, यदि आपको शुद्धात्मा बनना है तो शुद्धात्मा बनने के लिए आपको सही ज्ञान होना भी जरूरी है। तो सही ज्ञान पर यहाँ पर बहुत ज्यादा एम्फेसिस है जैनिज्म के अंदर। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। So what are the key takeaways, from, and I'm talking purely from a practical point of view. Number one is truth doesn't change, perspectives do, right? सत्य तो एक ही है जो है, और आप उसको एक पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो आपको वो एक सत्य लगेगा, दूसरे पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे दूसरा सत्य लगेगा। The third thing which I also want to bring here is the element of time. एक समय पर एक चीज सत्य लग सकती है, दूसरे समय पर शायद से वो चीज सत्य ना लगे। And this may be a little bit sort of controversial, but I want to give an example, again, practical life example. हम लोग typically business plans बनाते हैं, हम प्रोफेशनल लाइफ में या हम बिजनेस में एंटर हो रहे हैं या स्टार्टअप कर रहे हैं, हम बिजनेस प्लान बनाते हैं। हमने आज 2020 में और 2019 की बात करते हैं, हमने 2019 में एक बिजनेस प्लान बनाया और हमने सोचा कि अगले 10 साल के अंदर हमारी कंपनी रेवेन्यू को 0 से 100 बिलियन पर ले जाएगी। उसके अंदर हमने सर्टन अजम्पशंस को दिया कि अजम्पशंस हमने XYZ हैं। ये 2019 की सिचुएशन है, तब किसी को कोविड के बारे में पता नहीं था, राइट। अब आप 2020 में आ जाइए, कोविड आ जाता है। यदि उस बिजनेस प्लान को बनाते वक्त आपने कोविड के बारे में सोचा होता और एक सिनेरियो वो डेवलप किया होता तो शायद से आप थोड़ा सा सतर्क रहते, लेकिन आपने यदि वो सिनेरियो सोचा ही नहीं, आपने उस चीज के बारे में सोचा ही नहीं,
तो आपका बिजनेस प्लान पूरा फेल हो जाएगा। अब जब बिजनेस प्लान फेल हो जाएगा तो लोग आपको बोलेंगे कि आपका तो बिजनेस प्लान पूरा ही फेल हो गया, आपको तो कुछ आता ही नहीं है, आई मीन people will start pointing fingers at you. The point I'm trying to highlight here is कि आपने जब वो डिसीजन लिया था 2019 में, उस वक्त आपके सामने जितने डेटा पॉइंट्स थे, जितने एजम्पशंस आप ले सकते थे, आपने उनको ध्यान में रख के एक डिसीजन लिया और एक बिजनेस प्लान बनाया। That was time T. Now time T plus delta, उस वक्त कुछ चीजें चेंज हो गई। यदि आप अपने बिजनेस प्लान के अंदर उन चीजों को थोड़ा सा आगे सोचते हुए इनकॉर्पोरेट कर लेंगे तो शायद से हो सकता है आपका वो डिसीजन इतना रॉन्ग ना हो। लेकिन यदि आपने उन सिनेरियोज को डेवलप ही नहीं किया है, बेस्ट केस सिनेरियो, वर्स्ट केस सिनेरियो, मिड केस सिनेरियो, यदि आपने वो सिनेरियोज डेवलप नहीं किए तो आपका डिसीजन हो सकता है बहुत गलत हो जाएगा। सो यू हैव टू आल्सो कीप इन माइंड द एलिमेंट ऑफ टाइम टी while deciding some of or while making some of these decisions. And hence I say that truth doesn't change. जो आपने बिजनेस प्लान बनाया है कि इस प्रोडक्ट की रिक्वायरमेंट है, आज से 10 साल बाद रहेगी, वो चेंज नहीं हो रहा है। लेकिन हो सकता है कुछ पैरामीटर्स चेंज हो गए, आपको उन पैरामीटर्स के बारे में ध्यान रखना है एंड वो आपको पर्सपेक्टिव्स थोड़ा सा आपको उसमें चेंज करना पड़ेगा। Second, it helps develop a holistic view. We have talked about it, so I'll not go into it more. But I think what is important is that when you develop a holistic view, because you believe now in Anekantwad, because you have started listening to everyone in your team, you have started listening to some of the industry advisors, right? You also hearing them. You are hearing not only to advisors but also people on the ground, right? So not making decision at the CX level, but making decision from the information which is coming from the bottom level, right? Then there are many things which are happening. You're becoming a good listener. That's a very, very important aspect from a management point of view. If you are not a good listener, you will never be a good leader, right? If you're not a good listener, you will never be able to build consensus. Consensus is all about listening to other people. Yes, there are times when you have to take an executive decision. Nothing wrong with it. But try to get as many data points as possible while making that decision. But still, consensus building is important, right? Avoid conflicts. You will start avoiding conflict because of all these things. Your organization, your family, your society will be a much happier place when you do that. And all of these things will ultimately lead to effective leadership. You can take examples. We can go into the debate on Trump versus someone else, right? We all think that Trump is a bad leader. Why? Because our perception is that he doesn't listen to people. Maybe right, maybe wrong, but at the same time, he's also the president of such a vast country. He's also one of the very well-known business leaders. He knows what he's doing. He knows why he's doing. So my recommendation here, my advice to the young people would be: let us not judge people by what they are doing. We need to respect their views. We need to understand that where they are coming from. And if you apply the same thing in the personal lives, in the professional lives, we'll start seeing a lot of improvement in how things are taking shape. And the last part is that, it is, जो अंकल जी ने भी टच किया था last slide में, कि this is, Anekantwad is an effective doctrine in achieving peace and contentment. Very important, right? आपकी प्रोफेशनल लाइफ में, आपकी बिजनेस लाइफ में, पर्सनल लाइफ में, आप जब रात को घर आओ तो आपको एक सेटिस्फेक्शन होना चाहिए कि मैंने आज जो किया, जॉब में, पर्सनल लाइफ में, सोसाइटी में, मैंने जो किया, मैंने मेरे पास जितनी इंफॉर्मेशन थी उसके बेसिस पर अपना बेस्ट दिया है, राइट? बाकी लोगों ने जो इनपुट्स दिए हैं उन्हें भी मैं समझूंगा, और जब मैं डिसीजन लूंगा तो मैं इन सारे तथ्यों को, सारी इनपुट्स को, सारे डेटा को एनालाइज करके मैं एक डिसीजन लूंगा। तो आप जब ऐसा करेंगे तो आपको एक कंटेनमेंट होगा, आपको खुद को अच्छा लगेगा कि हाँ, मैंने सबकी सुनी है और उसके बाद एक डिसीजन लिया। सो आई थिंक दीज आर, इन माय ओपिनियन, सम ऑफ द की टेकअवेज. As I said in the beginning of my presentation, that this is really a very, very profound concept of Jainism. हम सब लोगों को उसको प्रैक्टिस करना चाहिए. मैं तो आज शायद से मे बी 10%, 5% शायद से कर पा रहा हूँ, बट कोशिश ये है कि हम इसको जितना 100% की तरफ लेके जाएं उतना अच्छा होगा. So this is where I'll park myself and open to any questions. And अंकल जी, again, यदि कुछ गलती हुई है उसको समझाने में तो उत्तम क्षमा मांगता हूं.
All right. So thank you, Manish Bhai, for a very practical approach to Anekantvad. I think uh, everybody in the audiences has definitely learned a lot. And for me, as I have been saying all the times, that whenever I listen to you or hear you again and again, there is something new which I learn, right? So for today, I think your perspective part I heard before, but the effective leadership part around listening is something which I can recognize and acknowledge. And that also links to your point, very important point about things change in time, right? So if I could have heard this 10 years ago from you, maybe I was not able to appreciate that part. But today, the listening and, using listening as a tool to avoid conflicts as a leadership practice, I think I can definitely understand that and I can appreciate that today. Which means that things changes over time is also a very important factor around it. All right. So before we go on question and answers, Priyesh, over to you. The poll which you want to do with the audiences, and then I will request Vidya and Miral Uh, to be ready with the yeah, questions. okay. Yeah. Yes, Priyesh. Okay. Thank you, Yogesh bhai. Now that we have listened to two different angles, शास्त्रों में कैसा है और प्रैक्टिकल वर्ल्ड में कैसा है, आई वुड हमारा सबसे अच्छा दोस्त ऑनलाइन मीडियम में, एज मनीष भाई सेड के हॉल नहीं है बट वी कैन रिप्लाई, would ask everyone to reply on a chat box, what do you understand of Anekantvad? Simple, just 2 words, 3 words maybe. Write in a chat box, what do you understand? आपके समझ से अनेकांतवाद का क्या मतलब है? Please, everyone, write in the chat box. Write your views in the chat box. What do you understand of Anekantvad? Multiple viewpoints of truth. That's nice. We just have one. How come? We have 2 stalwarts. 2 दिग्गजों ने अभी पूरा डिटेल मेंशन किया है. Can we have multiple details? Respect all views. Different perspective for different points. Simple realities of truth. Satisfy everyone's ego. मैं जो कह रहा हूँ वो सत्य है, परंतु हो सकता है आपका नजरिया भी सही है. Multiplicity of thoughts. I think the detail, with due respects to both the speakers, I think these all chats do notify that the message has gone very impactfully in the audience. Wow. Thank you so much, audience. Over to Vidya and Miral. Thank you so much, people, for participating. So there are multiple questions asked by many people. सबसे पहले जयंतीलाल जी के लिए एक क्वेश्चन विवेक जैन जी ने पूछा था, अनेकांतवाद कहाँ और कहाँ नहीं लगाना चाहिए? That was the first question. जैसा हमने कहा था कि अनेकांतवाद किसी भी एक वस्तु को समझने के लिए लगाना चाहिए. अनेकांत क्रॉस ऑब्जेक्ट्स में नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि एक ही वस्तु को समझने के लिए अनेकांत है. जैसे हमें आत्मा को समझना है या आकाश को, स्पेस को समझना है या और किसी भी एक वस्तु को समझना है, तो उसी में लगाने से वो बराबर समझ में आता है. जैसे एक व्यक्ति का एग्जाम्पल दिया, एक दिल्ली का एग्जाम्पल दिया. एक दिल्ली सिटी को ही समझने के लिए अनेकांत लगाएंगे तो समझ में आएगा, लेकिन यदि दूसरे क्रॉस रेफरेंसेस में चले गए तो फिर तो वो क्या कहते हैं, फुदड़ीवाद या कंफ्यूजिंग हो जाएगा सब. तो इसलिए अनेकांत एक वस्तु को समझने में लगाना चाहिए, और यही जैन शास्त्र की पद्धति है. एक आत्मा को समझने के लिए या एक जगत की व्यवस्था को समझने के लिए या जो भी एक समय है, टाइम एलिमेंट है, उसको समझने के लिए वहां पर लगाइए. मैटर को समझना है, फिजिकल और पुद्गल को समझना है, उसमें अनेकांत लगाइए. ओके, ये पुद्गल के गुण धर्म क्या है, तो वो बराबर है. लेकिन यदि हमने अक्रॉस या मतलब क्रॉस वे में लगाना शुरू कर दिया, अलग अलग चीजों में लगाना कर दिया, तो ठीक नहीं है. जैसे फॉर एग्जांपल कोई कहे कि भाई किसी अपेक्षा से हिंसा भी ठीक है,
और किसी अपेक्षा से अहिंसा भी ठीक है, ऐसा तो नहीं हो सकता, वहां नहीं लग सकता, क्योंकि अहिंसा हमारा महान सिद्धांत है और एक आत्मा दूसरी आत्मा को रेस्पेक्ट या आदर रखे, उस आधार पर वो बना हुआ है, तो इसलिए वहां पर नहीं चलना चाहिए। तो और भी दूसरे हैं, जैसे एक आत्मा भव्य है और एक आत्मा अभव्य है, एक मोक्ष में जाने की योग्यता रखता है और दूसरा कभी मोक्ष में नहीं जाएगा, तो वहां अनेकांत नहीं लगाना। अनेकांत तो एक ही वस्तु में जो धर्म है, एक ही वस्तु के जो गुण है, उसमें लगाना चाहिए। तो जैसे वो चींटी का एग्जाम्पल दिया, या और भी बहुत सारे एग्जाम्पल्स हो सकते हैं, सोने का एग्जाम्पल दिया, दिल्ली सिटी का एग्जाम्पल दिया। तो आपका प्रश्न बहुत अच्छा है और जानना भी ऐसा ही चाहिए। या एक दूसरा जो पर्सपेक्टिव आपके प्रश्न में नजर आता है वो ये है कि अनेकांत एक वस्तु को समझने में तो लगाते समय, जैसा मनीष भाई ने कहा था, देयर इज अ लार्जर पर्सपेक्टिव ऑफ इट, इज अ होलिस्टिक व्यू, एक दूसरा पर्सपेक्टिव है जो हमारे ख्याल में नहीं है। तो इसलिए ऐसा नहीं कह सकते कि वहां नहीं लगाना चाहिए, वहां पर भी लगाना चाहिए यदि उसी वस्तु से संबंधित है। किसी एक ऑब्जेक्ट के बारे में हम 100 चीजें जाने, लेकिन हो सकता है कि कोई 101th आइटम है जो हमको मालूम नहीं है, तो इसलिए वहां पर भी लग सकता है, लेकिन दूसरे में लगाएंगे तो गड़बड़ हो जाएगा। जैसे आत्मा में ज्ञान है और पुद्गल अजीब है, पुद्गल में ज्ञान नहीं है, तो वहां पर अनेकांत नहीं लगता, क्योंकि पुद्गल के जितने भी गुण हैं वो सब अज्ञानमय है, मतलब चेतन रूप नहीं है, और आत्मा के जितने भी गुण है वो चेतनमय है। तो चेतन 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 में लगाते जाइए तो ज्ञान, दर्शन, चारित्र, सुख, वीर, ऐसा सब में लगाते जाइए, अनेकांत प्रकट हो जाएगा। ऑफिस के कॉन्टेक्स्ट में जैसा भी बात चल रही थी, आप अपने पर लगाइए तो आप बराबर समझ में आ जाएगा। अपने व्यू को दूसरे के व्यू से समझनेंगे तो बराबर है, लेकिन एक दूसरे के क्रॉस व्यू को जस्टिफाई करने की कोशिश करेंगे तब गड़बड़ है। इस तरह से ये तो बहुत ही अच्छा प्रश्न है, हम कैसे स्टार्ट करें, ऐसा है तो बहुत ही अच्छा है। मतलब कि वास्तव में ऐसा ही है कि अब शास्त्रों की भाषा में कहें तो जहाँ मिथ्या जो चीजें जो जगत में है ही नहीं, जैसे तुमने कहा ना गधे का सिंग ही नहीं होता, नहीं, तो वहां पर लगाने की कोशिश करेंगे तो मुश्किल है। तो इसलिए जहाँ वस्तु है, एक वस्तु है, उस एक वस्तु को समझने में लगाना चाहिए, और अन्य जगह मतलब मिथ्या लॉजिक से उसको नहीं लगाना चाहिए। कोई ऐसा लॉजिक जो जैन धर्म की बेसिक मान्यता के ही विपरीत है, तो वहां पर अनेकांत नहीं लगा सकते। कोई नॉन वेज खाए तो चल सकता है, हम तो वेजिटेरियन, वहां पर नहीं लगता है। मैं कल किसी से बात कर रहा था कि भी इंटरफेथ जो काफी होते हैं डिस्कशन, उसमें उस तरह की बात चलती है, तो वो गलत अनेकांत का प्रयोग है। अनेकांत का प्रयोग एक ही वस्तु में लगाना, ऐसा बहुत ही क्लियर है। बहुत सारी जैन धर्म की जो राइटिंग्स है, समन भद्राचार्य, अमृतचंद्राचार्य, या जो न्याय के शास्त्र हैं, वो बिल्कुल क्लियर है कि अनेकांत एक ही वस्तु में लगा। एक ही वस्तु के अनेक धर्म है, अलग अलग वस्तुओं के अलग अलग धर्म तो है ही, तो हमें तो एक वस्तु के जो अनेक धर्म है उस पर जोर देना। तो बहुत अच्छा प्रश्न है, और हमें सावधान रहना चाहिए कि हम गलत प्रयोग उसका ना करें। थैंक यू जयंतीलाल जी। सेकंड क्वेश्चन इज फ्रॉम विनीत सुराना। वो पूछ रहे व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन रियलिटी एंड ट्रुथ। बहुत अच्छा, ये भी इज वेरी नाइस। लेकिन ऐसा नहीं हो, वो रियलिटी और ट्रूथ एक ही है, मतलब अंग्रेजी के दो शब्द अलग अलग हैं, बाकी सत्य ही है। पर सत्य शब्द का प्रयोग इसलिए नहीं किया कि सत्य एक डायमेंशन, एक मोमेंट्री सत्य और एक त्रिकाल सत्य है, नहीं, एक इटर्नल सत्य है जैसे हम आत्मा है, और एक मोमेंट्री सत्य कि हम अभी मनुष्य हैं। तो वो इस तरह से वो सत्य में डिफरेंसेस हो सकते हैं, रियलिटी में भी ऐसे डिफरेंसेस कर सकते हैं। तो हमारे वहाँ आई डोंट थिंक कि कोई बहुत बड़ा डिफरेंस इसमें नजर आएगा, दोनों लगभग एक ही हैं। एक तीसरा शब्द भी प्रयोग करते हैं हम लोग, प्रमाण। तो प्रमाण में सब एस्पेक्ट्स आ जाते हैं। प्रमाण मीन्स पूरी तरह से वस्तु को सारी, फ्रॉम ऑल एंगल्स वी अंडरस्टैंड दिस प्रमाण। ऐसा ज्ञान तो केवल ही परमात्मा को ही होता है, अनंत भगवान को ही होता है, जिनको केवल ज्ञान है उनको होता है। तो उसको प्रमाण के नाम से कहने में आता है। वो प्रमाण है, वही सत्य है और वही रियलिटी है। मैं उन दोनों में फर्क नहीं करता, ये शब्दों का ही फेर है और बाकी एक ही है। क्योंकि रियलिटी में हमें सारे वर्ड, जैसे हमारे क्या है जैन शास्त्रों में जो हम समझते हैं कि वो 6 द्रव्य हैं, वही रियलिटी है इस जगत की।
और हम आत्मा है, वही रियलिटी है। उसी को सत्य कह दीजिए। सत्य शब्द जो है ना, वो दो शब्दों से बना है, सत प्लस अत, स प्लस अत नहीं। तो जो अत मतलब अस्तित्व, जो अस्तित्व सहित है वही सत्य है, और रियलिटी जिसका अस्तित्व है वही रियलिटी है। इस तरह से दोनों शब्द एक ही हैं। कोई मतलब बाल की खाल निकालने के लिए कोई डिफरेंस कर सकता है कोई व्यक्ति, लेकिन वो ज्यादा नहीं चलेगा। हमारे हिसाब से दोनों एक। Third question is from Aradhna. What if we understand neither of us is wrong while conversing? And how do I make the person understand our point of view? So if I Manish, can you hear me? Yes. yes, Manish bhai. बोलिए बोलिए। Okay. So if I understand the question right, the question is ki how do we understand, how do we make sure that who is right? At what point? Can you just repeat? I want to make sure I The question is, what if we understand neither of us is wrong while conversing, and how do I make the person understand our point of view? Okay. So देखिए ऐसा है कि there will be many such occasions where you both are fighting and you have your own data points and they both are correct. And as long as the other person is willing to understand कि जो दूसरा व्यक्ति बोल रहा है वो भी सत्य हो सकता है, तब तो सॉल्यूशन है। लेकिन दूसरा व्यक्ति यदि ये बिल्कुल सोचेगा, ये मतलब मान के नहीं बैठा, एंड इफ ही और शी इज थिंकिंग दैट ओनली हिज और हर व्यू इज राइट, देन वहां प्रॉब्लम होना शुरू हो जाएगी। बट माय पॉइंट हियर इज कि as far as you are concerned, you should make sure that you are presenting the facts and you are taking a decision or you are conveying your viewpoint basis on certain facts, and you are not just अपने उधर हवा में तीर मारना, वो नहीं कर रहा है। क्योंकि यदि आप असत्य को मान के आप मतलब अपने आप को पुश करते रहेंगे तो फिर वो अनेकांतवाद नहीं है, राइट? सो आई होप आई हैव आंसर्ड द क्वेश्चन। Next question from Vivek Jain, Mumbai, for Manishi is, truth doesn't change, interpretation does. But if you are right in correctly interpreting the truth after a careful self-critique and waste your time in arguing, convincing, listening to others with wrong interpretations, how will you ever perform the action? Very good point. And again, I think it is important. So let's take again practical example, right? आपने यदि कोई आपको कोई न्यूज़ मिली और आपने उस न्यूज़ को सुना, लेट्स से आप टाइम्स नाउ पे गए, आपको एक पर्सपेक्टिव मिलेगा। आप एनडीटीवी पे जाओगे, आपको दूसरा पर्सपेक्टिव मिलेगा। आप किसी और चैनल पे जाओगे, आपको तीसरा पर्सपेक्टिव मिलेगा। और आप फिर उसी चीज़ को अपने किसी दोस्त के साथ बात करना शुरू कर दो, वो आपको कुछ और पर्सपेक्टिव देगा। नाउ दैट डज नॉट मीन कि आपको ये सारे जो पर्सपेक्टिव्स आ रहे हैं ये सारे सही ही हैं, राइट? So you have to do your own research. You have to understand the subject in holistic way, through your own ways and mediums, right? To make sure that you are getting to the सत्य की आप तह तक जा रहे हैं। आप इधर उधर की कही सुनी से आप उसको सत्य मान बैठेंगे और फिर अपना जजमेंट बनाएंगे तो वो भी गलत हो जाएगा। So अनेकांतवाद के अंदर ये बात नहीं है कि आप जस्ट मल्टीपल लोगों से व्यूज ले लो और फिर उसको लेके अपना व्यू बना लो and that becomes the right thing. It only gives you multiple perspectives, right? But at the end of the day, you got to make sure that whatever way you are thinking or whatever data points that you have are, and हमें तो हमेशा like हमारे जैनिज्म के अंदर we go back to our शास्त्र। Yes. कि हमारे केवल भगवान, हमारे जो तीर्थंकर है वो क्या बोल के गए हैं, हमारे लिए तो वही सबसे बड़ा सत्य है। तो हम उसको sort of एक as a reference point लेके चलते हैं। सही साइंस के अंदर है। साइंस वी नो कि certain things have been proved a certain way, so we believe कि ऐसा है तो ऐसा होगा, right? Let's take example मास्क। आज हम यदि मास्क पहन रहे हैं तो हमें पता है कि मास्क पहनने से जो आपका इन्फेक्शन है या जो अपने ड्रॉपलेट्स है वो ज्यादा आगे तक नहीं जा पाते हैं, वो रुक जाते हैं। साइंटिफिकली प्रूवन, दैट्स अ ट्रूथ, वो सत्य अपने आप में।
अब कोई कितना ही उसको झुटलाने की कोशिश करे या मल्टीपल व्यू पॉइंट्स लेके आए, that does not become a truth, you know. So I think that's where you have to start differentiating. Next very interesting question is from Mayank. How to handle aggressive behavior, as we might be able to understand others' point of view, but other people might not. So it might not lead to consensus in professional life. होता है, बहुत बार होता है ये, और ये बहुत कॉमन चीज है, और आजकल तो खासकर इस युग के अंदर तो बहुत ही ज्यादा कॉमन हो गया है. यदि मैं नरेंद्र मोदी को चाहता हूं या ट्रम्प को चाहता हूं या XYZ को चाहता हूं, तो आई एम पुट इन वन बास्केट and all the others are in another basket. The polarization has started happening, right? And then they start looking at you as your enemy. आपको Facebook पे वो block कर देंगे. I mean, they will sort of start writing on social media. आप professional world में जाइए, यदि आपने meeting के अंदर कोई एक view दूसरा रख दिया, तो there are people who will start thinking, oh, ये तो मेरे against बोल रहा है, right? So this is a very common problem that people start taking your different view or your perspective as a sort of something that you're opposing, and it can lead to conflicts. Now, the only thing you can tell the other person is that, look, this is my view. I may be right or wrong. You may have your own view, and I'm perfectly open. I'm willing to listen to your view. But I don't think that because as Jains, we understand Anikantwad, we also understand Ahimsa and all those things, right? As far as we control ourselves, as far as we limit ourselves, that, okay, fine, let's not get too nasty, right? Your view, I respect it. Maybe, I'm not able to understand your view. You will notice that the other party also gets quiet. एक थोड़ा सा एक ठहराव आ जाता है. लेकिन यदि आप भी उससे तू मैं करना शुरू करते जाएंगे, तो बात कहीं रुकने वाली नहीं है फिर. सो अनेकांतवाद आपको वहां हेल्प करेगा. आप में एज लॉन्ग एज वो ज्ञान आ गया कि यार ठीक है, ये मेरा व्यू है और ये उसका व्यू है, यू विल सी समवेयर एक जो हम बात कर रहे थे कॉन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन, वो आना शुरू हो जाती है. मनीष भाई, जस्ट एक अपना व्यू पॉइंट मैं वैलिडेट कर रहा हूँ आपसे. मैंने कई जगह ऐसा अंग्रेजी में बोलते हुए लोगों को सुना है, एंड देन आई आल्सो स्टार्टेड थिंकिंग एंड यूजिंग इट, राइट? एंड इट इज अ फॉर्म ऑफ अनेकांतवाद दैट पीपल से लेट्स एग्री टू डिसएग्री and close the meeting, right? So everybody agrees that we are disagreeing, which means that we are not fighting, we are not conflicting, but we agree that our views are not matching. Correct. Is it a good state to be in? Yeah, look, again, I don't see anything wrong in that, because what everyone has decided or agreed is we have our views. We have listened to your views also, right? And शायद से उस डिस्कशन के शुरू होने के पहले हम लोग जिस लेवल पर थे, अब हम लोग डिस्कशन करके थोड़ा सा हाई लेवल पर आ गए. एटलीस्ट वी हैव अ बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ ईच अदर. Still, Correct. if we have not reached to a conclusion, that's perfectly fine. That only means that we need more data points. We are making a decision. If we are making a decision right now, where all of us are not on one page and we are not in a consensus, that means we still need some more data points to make the decision. Right? And that's what the consensus is all about. Now, again, as I was talking in my presentation, the leader has to still make a decision. तो आप इनफाइनाइट इस लूप के अंदर नहीं घूम सकते कि भाई हम सब ओके वी एग्री टू डिसएग्री और कोई डिसीजन नहीं ले रहा है. तो फिर तो आप वो टिपिकल अपना एक सरकारी जो एटीट्यूड होता है कि यार कोई साइन ही नहीं कर रहा है, तो हर आदमी बैठा है अपनी फाइल के ऊपर. someone has to take a decision, right? So take a decision, because again at the end of the day we are worldly creatures, right? हमें कहीं ना कहीं decision लेना पड़ेगा. And as I said, at time T, based on the information I had in front of me, I took a decision and I stand by my decision. Now I may be wrong. Tomorrow certain things may go wrong, but that's a decision we are taking as a team or as an individual in our own capacity. Correct. हाँ ठीक है, ये भी एक तरह का कंसेंसस ही है ना, कि हमें पता है कि मल्टीपल व्यू एग्जिस्ट कर रहे हैं रूम के अंदर, लेकिन हम एक डिसीजन ले रहे हैं. इट इज आल्सो अ कंसेंसस, राइट? And as long as you document it,
राइट कि भाई लोग Exactly. जब हमने डिसीजन लिया था तो ये रिस्क, these were the risk points, these were the issues which were not fully resolved. Correct. Okay. Okay? Understood. मैं आपको एक practical example देता हूँ. This is a very very classic example. Most of you will run in your personal lives also, practical lives also. आप let's say एक business शुरू करते हैं, और जब आपने business शुरू किया तो उस वक्त आपको पता है कि उस particular product पर certain amount of tax लगता है. ठीक, let's say the tax is 10%. ओके, 4 साल निकल गए, 5 साल निकल गए, नई सरकार आ गई. नई सरकार को लगा कि अरे फिस्कल डेफिसिट बहुत ज्यादा है, रेवेन्यूज नहीं आ रही हैं, हमें तो टैक्स बढ़ाना पड़ेगा, हमें तो और लोगों से टैक्स लेना पड़ेगा. अब वो 10% टैक्स बढ़ा के सरकार ने 15% कर दिया. इट्स डायरेक्टली हिटिंग योर प्रॉफिटेबिलिटी. करेक्ट. सो समवेयर in your decision making process, if you have not taken such scenarios into picture, or if you have not introduced certain clauses in your agreement which safeguards your profitability, then you will get hit. Okay, so at that time someone was raising that point कि look, जब 15% हो जाएगा तब आप क्या करोगे? आप डिसएग्री कर रहे थे कि नहीं होगा ही नहीं, ऐसा हो नहीं सकता, कभी भी 10% ही रहेगा. बिल्कुल. So as long as when you are making the decision and you document it, कि look, we are making this decision because today, as per the information available to us, it will only be 10%. But you know, we do see a risk here that in future this tax may increase, and based on this you've taken a decision. Now that's a calculated decision. Okay. Understood. Yeah, Miral. Yes, there is one more interesting question from Shival Jain for Manish ji. With perspective to understanding top management decision, is it not necessary on their part also to open up about their point of view? Oh, absolutely. Absolutely. So this is not only for people who are not on the top. This discussion is for everyone, every soul. Even the person who's sitting at a CXO level or a president, of the country or whoever, he or she also has to have the same thing. अनेकांतवाद is for everyone. और इफेक्टिव लीडर वो तभी होगा जब वो भी ये प्रैक्टिस कर रहा है. Yes. Then one more question is there from Saurabh Jain. He says, sir, I'm a bit confused. If you're respecting everyone's view, then how to differentiate that, where to put अनेकांतवाद? कहाँ लगता है, कहाँ नहीं? इसमें तो हम सिर्फ अपना व्यू मान रहे हैं. I'll let Uncle ji handle this. Yes. नहीं, अच्छा प्रश्न है, लेकिन ऐसा कि ये अनंत कभी नहीं कहता कि दूसरे के व्यू को रेस्पेक्ट किया जाए. दूसरे के व्यू को जानने की बात है. जानने का मतलब ही नहीं कि रेस्पेक्ट किया है. डिसीजन तो अपना होता है. जैसे हमने कहा ना, अहिंसा की बात को लेकर कोई बात कहे तो वो इसके व्यू को रेस्पेक्ट नहीं कर रहे हैं. और जैसा अभी आपने थोड़ी देर पहले कहा था ना, एग्री टू डिसएग्री, तो वो ऐसा ही बात है. मतलब we disagree, no? It's not necessary that we have to respect. Respect means knowing, not more than that. That is one point. Second point is that it is not necessary to speak also. Somewhere somebody should not get the impression that yes, if there are multiple viewpoints, we should speak about it. If you speak, it's okay. If there is a dialogue, you can speak about it. If there is a mutual respect in dialogue, then you can speak about it. But if there is no respect for whatever you are saying, then where is the need to talk about it? I will just give you one example. When I was talking in some interfaith meeting, then I spoke about some Jain philosophy aspect, particularly on non-violence. The other person, you can guess from a different community, he said that yes, I respect whatever he named me and said that whatever Dr. Ethan said, I agree with it, but I disagree when he says that we should have a kshama and all those things. So that we cannot have a respect for that, nor we can at the best situation remain quiet. जैसे मुनिराज हमारे उपसर्ग में शांत रहते हैं, उस तरह से हमें उसमें शांत रहना है. तो not necessarily that we have to answer. और इसलिए confusion का कोई सवाल नहीं है. It's a very good question, but we need not respect everybody. We respect as a human being. That's a different point. But we need not. जो होता है ना, पाप से नफरत करो, पापी से नहीं, ऐसा भी. So we may not agree with particular view. Doesn't mean कि उससे disrespect. Individually we are not disrespecting. Then differentiating where to put Anekantvad,
कहाँ लगता है और कहाँ नहीं लगता वो नहीं डायरेक्टली पहले ही कहने की कोशिश की कि एक ही वस्तु में और उसके धर्म है तो वहां पर तो लगता है, उसके गुण है तो वहां पर तो लगता है, लेकिन उस वस्तु से रिलेटेड ही नहीं है तो वहां पर तो वो नहीं लगेगा। जैसे आप अपनी किसी एक कंपनी में काम कर रहे हैं तो वहाँ के जो सिद्धांत हैं, वहाँ का जो प्लानिंग है, वहाँ के जो टारगेट्स हैं, वहां पर तो वो लगता है, लेकिन दूसरी जगह नहीं लगेगा। और जैसा अभी एक प्रश्न भी आया था कि टॉप टू बॉटम या बॉटम टू टॉप मतलब वो होना चाहिए डायलॉग, नॉट नेसेसरी ना। चेयरमैन ऑफ ए कंपनी और सीईओ may or may not explain to the people down the line. He may explain but not so elaborately because he has a larger view. अभी मनीष जी ने बताया था ना कि somebody has a global perspective, what is happening in Africa, what is happening in other parts of the world, and not necessarily concerning about one particular area. One particular area may have different requirement, but not all other parts of the world. So a holistic, a larger view has to be taken, and when we speak, of course, it is okay, but otherwise we don't have to disrespect, but at the same time, what do we mean by respect? That's the only point, okay? Respect means we understand what he says, that's all. Yes. And if we feel that it is good point, we accept it. But if you feel that it is not good point and we cannot openly refute that particular point, उसकी निंदा नहीं कर सकते तो we keep quiet. जैसे कहा ना आजकल टेलीविजन चैनल्स में, मनीष जी ने बहुत अच्छा पॉइंट किया कि भाई टेलीविजन चैनल्स में तो आजकल ऐसा ही हो गया बिल्कुल। सुशांत के मर्डर को लेकर कितने कितने डिफरेंट व्यूज, कंप्लीटली डिफरेंट व्यूज आर कमिंग बिफोर अस। तो हम क्या कर सकते हैं? वी कैन रिमेन क्वाइट ओनली एंड ट्राई टू हैव आवर ओन जजमेंट, एंड दैट्स ऑल। इन द सेम वे दिस लार्ज, इसलिए हमने बार बार समोशरण और भगवान की बात कही थी कि कुछ व्यूज ऐसे हैं जहां हम वी कैन नॉट रिजॉल्व एट ऑल, ओके, तो फिर वो भगवान के समोशन में ही जाकर के रिजॉल्व होते हैं। मेरा सौरभ जी से कहना कि कंफ्यूज होने की कोई जरूरत नहीं है कभी, क्योंकि हमारे पास टूल्स हैं, हमारे पास सिद्धांत हैं और उसका हम बारंबार विचार करके निर्णय कर सकते हैं। इसलिए लेट अस गो एंड रीजन इट आउट। हम इसलिए डायलॉग शब्द का प्रयोग करते हैं। संवाद का डजंट मीन कि वी हैव टू टॉक। संवाद में संवाद अपने आप से भी हो सकता है, और जब हम किसी आचार्य या कोई बुक पढ़ते हैं तो उस समय भी उस ऑथर के साथ संवाद कर रहे हैं। संवाद में रीजन इट आउट, अप्लाई मोर एंड मोर लॉजिक एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड। तो ये तो चलेगा, मतलब हम क्या कहें, जब तक केवल ज्ञान नहीं होगा तब तक हमारे कुछ न कुछ डाउट, कुछ न कुछ कंफ्यूजन रहेगा ही रहेगा। और इसलिए जिस में या जिस जगह हम काम करते हैं वहां पर भी हमें कुछ न कुछ कंफ्यूजन रहेगा। सो कंफ्यूजन में भी ओके टू सम एक्सटेंट, लेकिन उसका रिजॉल्व करके हमें आगे बढ़ने का एंड ट्राई टू टेक अ होलिस्टिक व्यू जानना चाहिए। और इसीलिए जो जैन धर्म की विशालता है, जैसे हमने शुरू में और बार बार कह रहे हैं इनडायरेक्टली, वो बहुत ही जबरदस्त है। मतलब 3 लोग 3 काल को साथ में रख करके जैन सिद्धांत बताया गया। टोटल यूनिवर्स ऑफ पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर, ऑफ ऑल लाइव्स, ऑल मैटर्स, उनमें क्या रेगुलेटिंग फोर्स है उसको अनेकांत के द्वारा समझा गया है। तो इसलिए इट हैज दिस सब्जेक्ट मैटर इज मतलब बहुत विशाल है, बहुत ही गंभीर है। इसलिए जितना हम समझ सकें हमें समझना चाहिए, और नहीं समझ पाए तो लीव इट फॉर लार्जर व्यू, और कभी इस प्रश्न का समाधान होगा। लेकिन फिर भी जिनवाणी में अनफ ज्ञान है, लास्ट सेंटेंस, जिनवाणी में अनफ ज्ञान है, हमारे अनफ सिद्धांत हैं कि हम हमारे डे टू डे प्रॉब्लम तो वी कैन इजीली रिजॉल्व इट। सुमेरु पर्वत कितना ऊंचा है नहीं ऊंचा वो वी कैन नॉट रिजॉल्व इट, लेकिन अदर थिंग्स वी कैन ऑलवेज रिजॉल्व इट एंड मेक आवर लाइफ पीसफुल। शांति से हम जीवन जी सकते हैं एंड वी कैन अवॉइड कॉन्फ्लिक्ट्स इन आवर ओन लाइफ। हेलो, हाँ यही पे था अभी आए। हेलो। So my next question है, एक जन प्रसून जैन जी ने लिखा है, correct me if I'm wrong, the reality can be changed but truth cannot be changed. Like a address is same but few months it was a house, now a hotel was made there, but the address is the same. So address is truth. Sky is blue in reality but actually it is not. So isn't it an example of truth and reality? इसके जवाब पे पहले जाने से पहले, सॉरी अंकल जी,
मिरल आप बोलिए, कौन बोल? या सॉरी अंकल, योगेश बोल रहा हूँ। मिरल, हम एक दो और क्वेश्चन ले सकते हैं इन इंटरेस्ट ऑफ टाइम, Yes. एंड उसके बाद अनेकांत जी ने कुछ पंक्तियां लिखी हैं, मैं चाहूंगा कि वो अनेकांत जी से खुद ही बोलेंगे हमारे लिए, Sure. ठीक है? अंकल जी सॉरी, कैरी ऑन, आई एम सॉरी। नहीं, हम तो एक ही लाइन बोलना चाहते थे कि वो रियलिटी को आप क्या अर्थ से समझते हैं? वो रियलिटी, वो सत्य है। रियलिटी जो आंखों से देखते हैं ना, वो रियलिटी नहीं है। और वो है तो वो बहुत ही, जिसको हम समव्यवहारिक प्रत्यक्ष ऐसा बोलते हैं, इट इज वो टेम्पररी रियलिटी है, एंड विद लेसर ऑब्जेक्टिव, लेसर इंटेलेक्ट या कुछ भी इंटेलिजेंस। वो केवल ज्ञान वाला रियलिटी नहीं, प्रतिशत ज्ञान का नहीं जानना होता है। इसलिए आई थिंक रियलिटी का मतलब यहाँ पर शाश्वत व्यवस्था क्या है उसकी बात है, और इसलिए वो शाश्वत व्यवस्था और रियलिटी एक ही चीज है। रियलिटी हम लोग क्या रियल स्टेट को भी बोलते हैं, वो रियलिटी नहीं है, ठीक है? वो यहाँ पर बात नहीं कही है। रियलिटी का मतलब शाश्वत सत्य, वस्तु व्यवस्था क्या है, व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ द यूनिवर्स, हाउ द यूनिवर्स इज फंक्शनिंग एंड हाउ ऑल द मैटर्स आर फंक्शनिंग, वो रियलिटी। सत्य कहते हैं फंक्शनिंग नहीं आती, रियलिटी कहते ही उसका फंक्शनिंग भी आ जाता है। And Yogesh ji, last question from myself for both the speakers. Sure. मैं सोचता हूँ कि इन दिस सबसे ज्यादा प्रॉब्लम आ रहा है हमारा मान भाव। हमारा मान भाव ही हमको बहुत ऑब्स्ट्रक्ट करता है टू अंडरस्टैंड द प्रिंसिपल ऑफ अनेकांतवाद। सो मेन अगर वो मान भाव अगर हमारा सप्रेस हो जाता है, so then only we start accepting more and more and more. So how do you help it run it in a daily point of life, every day to day, छोटी छोटी से चीज लेके बड़ी बड़ी बिजनेस डिसीजन तक, it is मान भाव जो आपको स्टॉप करता है प्रोग्रेसिंग। बिल्कुल सही आपका कहना कि ये जो हमने कषाय शब्द का प्रयोग किया था और स्लाइड में वो क्रोध मान माया सब लिखा उसमें, तो वो बिल्कुल आप, यू आर राइट, मतलब योर ऑब्जर्वेशन इज वेरी करेक्ट कि ये राग द्वेष के भाव के कारण जिसमें मान भी आ जाता है और उसके कारण से ये जीव एक्सेप्ट नहीं करता है दूसरे के व्यू को। तो जैसे जैसे वो रियलिटी को समझेगा, जैसे जैसे वस्तु व्यवस्था समझेगा, जैसे भगवान की बात को या जिनवाणी के उपदेश को समझेगा, क्योंकि उसका मान का भाव कम हो जाएगा। 10 लक्षण धर्म में भी मान की बात चलती है, तो वही है कि जो जगत की व्यवस्था क्या है, फंक्शनिंग क्या है यूनिवर्स की, और हमारा कैसे मान करने से कर्म बंद होता है और अगले भव हमारे कितने खराब हो जाएंगे, ऐसा जिसको समझ में आ जाता है वो अपने आप शांत हो जाएगा, और तब उसका अंडरस्टैंडिंग भी बेटर होता जाएगा। और आपका बिल्कुल सही है कि जब क्रोध में या मान के भाव में चल रहे हैं तो वी विल नॉट लिसन टू एनीबॉडी एल्स, वी थिंक दैट व्हाट वी आर थिंकिंग इज राइट। तो वो बताया ना, चींटी जा रही थी अपने मान के चक्कर में, तो बिल्कुल सही ऑब्जर्वेशन है। बस उसका एक ही उपाय कि तत्व ज्ञान कीजिए, जिनवाणी को समझिए, भगवान ने जो यूनिवर्स की व्यवस्था बताई है उसको समझिए, कर्म की व्यवस्था समझिए, और सरल एक लाइन में एक शब्द हम बोले तो आत्मा को समझिए। आत्मा में क्रोध मान माया लोभ नहीं है, और इतना समझते हैं तो वो मान का भाव हमारा धीरे धीरे कम हो जाएगा। एकदम तो नहीं जाएगा, लेकिन जो व्यवस्था है उसके अनुसार कम हो जाएगा। मैं एक चीज बोलना चाहता हूँ, और मैं आई थिंक आई एम सीइंग द पॉइंट फ्रॉम विवेक जैन मुंबई। आई थिंक ही इज राइटिंग एग्री टू डिसएग्री, घर में कैसे इंप्लीमेंट हो सकता है ऑफिस पार्टीज अंडरस्टैंडेबल। बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, और आई थिंक डिस्कशन करना चाहिए इसको थोड़ा सा। और हम सब लोग आई थिंक उस एज ग्रुप में है जहाँ पर आई विल से वन थिंग कि एक फादर बनने के बाद आई थिंक आपको इस बात का एहसास होना शुरू हो जाता है कि जो हमारे फादर हैं उन पर क्या बीती होगी। जब तक आप खुद फादर नहीं बनते हो तब तक आपको लगता है कि वो गलत है और बस हम ही सही है, पर जब आप खुद फादर बनते हो तो आपको लगता है कि आप भी कितने गलत थे और आपके फादर कितने सही थे, राइट? क्योंकि अब आपको वो सब चीजें आपके बच्चे भी सिखा रहे हैं या वो आपको मिरर दिखा रहे हैं, राइट? एंड आई थिंक दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि अगेन आई कम बैक टू अनेकांतवाद। यदि फादर ये सोचे कि बिकॉज वो फादर है इसलिए वो सही है, आई थिंक दैट्स अ बिग प्रॉब्लम, एंड दैट्स वेयर परिवार बढ़ जाते हैं, बच्चे गलत राह पे चले जाते हैं, और वो मतलब कितनी बार जो सही चीज है उससे भी अलग हट जाते हैं, क्योंकि सिर्फ वहां पर वो जो आप ईगो की बात कर रहे थे मिरल, वो आ जाता है, राइट? जैसा हमारा ईगो है वैसा हमारे बच्चों का भी हो सकता है, किसी और का भी ईगो हो सकता है। So all these things are interlinked.
And again, I think if we really start implementing the principle of Anekantwad, even in our personal life, in our family life, right? मैं आपको बहुत again ये सब चीजें personal example से बहुत अच्छे से समझाने में आती है. I was having this discussion yesterday with my daughter. कल ये lunch की बात है और ये बात हो रही थी, and she explained me कि उसे जब लंदन कॉलेज जाने के लिए जब उसको जाना था और मैंने एक बार हाँ कर दी थी, लेकिन जब कोरोना वायरस के कारण मैंने उस डिसीजन को चेंज करवाया तो शी फेल्ट वेरी बैड, शी डिड नॉट लाइक इट. ओके, और उसका पर्सपेक्टिव ये था कि क्या है, सब तो आ रहे हैं जा रहे हैं, सब कुछ तो हो रहा है, सो व्हाई आर यू स्टॉपिंग मी, मेरे दोस्त लोग भी तो गए. नाउ आई एक्सप्लेन हर, और मतलब ये पहले की बात है जब उसको एक्सप्लेन किया था कि भाई लुक, they may be going there maybe because they were not aware of the realities on the ground. हमारे सामने जो इन्फॉर्मेशन है उससे हमें साफ साफ दिख रहा है कि वहां पर सेकेंड वेव आ रही है, सरकार वहां पर पार्लियामेंट में डिसीजन ले रही है, रेस्ट्रिक्शंस बढ़ा रही है. यदि ये जानते बूझते भी हम यदि ये डिसीजन लेंगे और फिर कल से कुछ हो जाता है तो आप किसको दोष देंगे? So when I put that perspective in front of her, she was able to relate to it much better. Yes. And I mean, this is where the father and the kids need to have a discussion, need to explain to each other their perspectives. हो सकता है वो कई बार आपकी बात न माने, जिद पे अड़ जाए, लेकिन आप समझा करिए जितना हो सकता है, और कहीं ना कहीं वो बात समझ में आएगी. और मेरे हिसाब से today I know that my daughter is fully convinced that that was the right decision to do after that discussion. So I think Anekantwad really helps even in our family matters or personal matters. Yeah. Good. So if there are no more questions in there, and if there be more, we can probably answer at the start of the next session in next 2 weeks. Let me introduce Anekant ji now towards the end, because आज उनका कुछ कमिटमेंट था जिससे वो टाइम पे ज्वाइन नहीं कर पाए, कुछ और सेशंस थे. सो अनेकांत जी, मैं चाहता हूं कि आप अपनी जो लाइंस हैं आप खुद पढ़ें और उसका मतलब भी बता दें, क्योंकि मेरी समझ में तो ज्यादा मतलब आया नहीं है. बाय द वे, फॉर ऑडियंसेस एंड स्पीकर्स, अनेकांत जी को हम मतलब अपने संस्कार सीरीज का गुरु कहते हैं, क्योंकि उनका ये कमिटमेंट है हमारे साथ कि वो कोई भी सेशन हो वो हमारे साथ लगातार कंटिन्यूसली रहेंगे जब तक हम संस्कार सीरीज चलाएंगे, और ये चलती रहेगी. इसका मतलब वो हमेशा हमारे साथ बने रहेंगे संस्कार सीरीज में, और ये उन्हीं का मार्गदर्शन है कि हम आगे धीरे धीरे बढ़ते जा रहे हैं. हमने सीजन 1 किया और हम अब सीजन 2 भी कर रहे हैं. So thanks Anekant ji once again for that. Over to you. Anekant ji. I think so. He's not there. He's not there. Okay. Then maybe he dropped. Okay, then it's fine. Priyesh, do you have any other poll to run? Yogesh, you want me to read what he wrote? Sorry. yes, go on. या तो अनेकांत जी ने बहुत प्यारा सा लिखा है, अपने चेहरे से जो जाहिर है छुपाए कैसे, हम आपकी नजरों के मुताबिक नजर आए कैसे, कोई अपनी ही नजरों से तो हमें देखेगा, एक कतरे को समंदर नजर आए कैसे. Very nice. Good. Yeah, very nice. Okay, over to you, Priyesh. You wanted to run another poll before we close? No, I think there is enough All right. discussion. All right, then we are good. So once again, thanks to Uncle Ji, Jayantilal Uncle Ji and Manish Bhai. Thank you so much for taking time out for this session. We are on behalf of Young Gens again and again. I like to say a big thanks to both of you, and Manish ji, special thanks again to keep us motivated and keep us influencing towards whatever we can do in our capacities to serve the Jainism. Yogesh, if I may just because if I don't say this, it would be wrong on my side. So I want to make sure that I thank all of you, and specifically, all my brothers and sisters and teammates from Young Gens of India, you and Neeraj and Aklang, Kanurag, Apollo, Mitesh, Nihal, Preeti, Vinay,
I mean, all of you guys, you deserve, I mean, you have done such a wonderful job, and you have continued Young Giants here, in a new shape, a new avatar. And my best wishes to you, my good luck to you, for the simple cause of Jain unity and youth unity, and making sure that our youths are following Jain principles. I will always be available whenever you need me. Thank you very much. Jai Jain Hind. All right. Thanks, Manish bhai. Thanks, Uncle Ji. Thank you. All right. Thanks everyone for joining. And we have our next session coming up in next 2 weeks. And we will hear from new speakers on the same topic, Anekantvad, and then we will start getting into details of nitty-gritty of Anekantvad as we move on. So as you all know that we have planned 10 sessions to only talk about Anekantvad and its details, and we will continue every 2 weeks, 10:30 to 12, every Sunday. I mean, every 2 weeks, Sunday, 10:30 to 12. All right. Thank you. Jai Janendra. Jai Janendra. Jai Janendra.